Okay. So welcome back to the Dubai International Cricket Stadium, match number 1 of the Pakistan Super League for season 4, the year 2019. Just 5 minutes away for the first ball to be bowled. We missed out on the action early part. The news is that Islamabad United won the toss and invited the Lahore Qalandars to bat first. Let's look at the two teams, and starting off with Lahore Qalandars, and led by Mohammad Hafiz this year, Abby de Villiers in the side, and Fakhar Zaman also in the side with Sohail Akhtar along with Anton Debchich. Brendan Taylor, the former Zimbabwe player, and he's going to be the wicket keeper of the side as well. Carlos Braithwaite, another heavyweight in T20 cricket, along with Yasir Shah and Shaheen Shah Afridi, the youngster who's been certainly superb over the last 12 months, and Haris Rauf along with Rahat Ali makes up the 11 for Lahore Qalandars. We have with us our golden boy, Akil Samam. Welcome back, Akil, and I'm pretty sure that you've got another team lined up. Yes, definitely. Thank you, the killer voice from Colombo, Mr. Gauger. And good evening to all our listeners back home. It is going to be the first game. तो जो टीम उतारी जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वो डेफिनेटली उतनी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ टैलेंटेड और कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर मुश्तमिल आज नौजवान ऑलराउंडर रिजवान हुसैन को इनकी टीम में मौका दिया गया है. द यंगस्टर फ्रॉम लाहौर इज गोइंग टू फीचर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड along with the Mr. Runs, Luke Ronchi, जिन्होंने हमें याद है कि अब से 1 साल पहले जो आखिरी मैच दुबई में खेला गया था, वहाँ पर कराची किंग्स के साथ जो हाल किया था, वो डायरेक्ट रसाई हासिल करने में कामयाब हुए कराची के फाइनल के लिए. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से. देन दे हैव गॉट फिलिप सॉल्ट, अनदर वेल्श क्रिकेटर, जो कि एक इंटरेस्टिंग पिक है इस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से. हुसैन तलत, जो कि अब एक फॉर्मिडेबल ऑलराउंडर बन चुके हैं पाकिस्तान की टीम के लिए. द साउथ अफ्रीकन कैमरॉन डेलपॉट, आसिफ अली, फहीम अशरफ, शादाब खान, समित पटेल, मोहम्मद समी, द कैप्टन, and the young Waqas Maqsood. So one thing is for sure कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक ऐसी टीम है जिसे यंगस्टर्स को मौका दिया गया है. And if you look at the Pakistan team currently, the team which played last time against South Africa, a number of players were provided, or rather we can say that groomed by Islamabad United. We can see Hussain Talat, Shadab Khan, Asif Ali. They all are the names which were introduced by or groomed by Islamabad United. So you never know that Rizwan Hussain could be the next one in line for Pakistan team. That's right, yes. PSL has done so well for Pakistan cricket to break in with the youngsters, Shaheen Shah Afridi, another youngster who really broke into the scene for Pakistan, and thanks to PSL, in fact, and last year he really came good. So the opening game, in fact, today, Islamabad United taking on Lahore Qalandars, so the champions taking on the wooden spoonists. Now this is something that is very interesting to see. The two teams have changed over, captains have changed, team members have changed, and in my book, Akil, is that this is even Stevens at the moment. Yes, very valid point. If you look at the two teams, Islamabad United were the champions, but on paper this evening, Lahore Qalandars, at least to me, are looking much, much stronger. Look at the squad. They have got Carlos Braithwaite, remember the name from the World T20 3 years back, जिन्होंने मैच का 5 पलटा, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रहे. आज वेस्ट इंडीज़ की टीम इनके बगैर शायद कुछ ना होती कम अज़ कम T20 फॉर्मेट में. देन देव गॉट मोहम्मद हफीज़, द प्रोफेसर हिमसेल्फ, एंड द मिस्टर 360, जो कि अपना PSL का डेब्यू करने जा रहे हैं. एंड रिमेंबर ही इज़ गोइंग टू बी देयर इन लाहौर फॉर द बैक टू बैक मैचेस लेटर इन द next month. So all set, and then they've got Shaheen Afridi, who was well and truly the fount of Lahore Qalandars, जो कि last year इन्होंने परफॉर्म किया. Brendan Taylor, another well known name. Anton Debchich यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं. तो ऑन द पेपर आई थिंक जो पलड़ा जिसको हम कहते हैं तराजू का, वो बड़ी हद तक झुका हुआ है लाहौर कलंदर्स की जानिब. A quick mention of this magnificent setting of Dubai International Cricket Ground, which is absolute chock-a-block this Thursday evening.
almost 10 in the evening. लेकिन आज जो पहले ही गेम में माहौल सजने वाला है, it's just been marvelous, remarkable scenes, Eric. It is just the beginning, and look at the crowd here. That's right, absolute capacity crowd. They came in their numbers, they came for the opening ceremony a short while ago. And as you see the umpires walking out, and the players are following the umpires as well. So that's really a good beginning to see that everybody is ready to go. That's right. तो आपको याद कराते चलें जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है FM1062 पर कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कप्तानी का डेब्यू करने वाले मोहम्मद समी ने अब से 20 मिनट पहले टॉस जीतने के बाद इस PSL 2019 के पहले गेम में पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, which is right away looking like a challenging decision, जो कि अब देखना होगा कि लाहौर कलंदर्स को कितना मुश्किल में डालने में कामयाब होता है। और उन्होंने अपने एक और ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने आकर PSL से अपने लिए कम से कम कॉन्फिडेंस ज़रूर हासिल किया और आज पाकिस्तानी टीम का हम जुज़्व हैं, उनके साथ शुरू करने जा रहे हैं फ़खर जमान और उनके साथ मौजूद रहेंगे अनदर सेंसेशन फ्रॉम पाकिस्तान सुहेल अख्तर, जो कि अब तक 36 मैचेस में फीचर करने में कामयाब हो चुके हैं। So one thing is for sure that it is either do or die for Mr. Zaman this evening, जो कि इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं, फास्टेस्ट लेवल पर रन्स बनाने वाले, पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले इन दी ODIs ये वाहिद क्रिकेटर हैं और अब तक ऑलमोस्ट 2000 रन्स हासिल कर चुके हैं। एंड ऑन दी अदर साइड ऑल सेट for Mohammad Sami to debut for Islamabad United. Commentary box से गेंद करने के लिए तैयार, all set for PSL 2019. Right, so here we are. The openers in the middle, Suhail Akhtar along with Fakhr Zaman open the batting, and Mohammad Sami, the captain of Islamabad United, will open the bowling. And he starts from the main grandstand end or the commentary box end. And look at the field that Mohammad Sami has got for the left-handed Suhail Akhtar. He's got a slip in place third man, a backward point, a point extra cover, and the mid-off. On the onside, he's got a short fine leg, a deep backward square leg on the boundary. So there's no protection on the onside between that mid-wicket and the long on area. So he's got to be bowling just outside the line of off stump. He's got to be careful as to where he drops that ball. And certainly all set for the first ball to be bowled in Pakistan Super League Season 4 for the year 2019. Here we are, umpire about to call play, he opens his arms out, and Mohammad Sami at the top of his mark at the moment. So the field's all settled in, players are all settled, and here's Mohammad Sami on his way now. First ball to be bowled, but he's having a word with the umpire in the meantime. Well, what it was all about, we wouldn't know. We're so far away from the playing action itself. But Mohammad Sami at the top of his mark to bowl the first ball of PSL 2019. Suhail Akhtar, well, he's the man on strike. And here we go with Mohammad Sami about to begin his run. On his way now to bowl the first ball of PSL 2019. Bowls, driven on the offside, beats the mid-off down towards long off. That's four. So here we are, Fakhr Zaman off the mark in style. This is only the first delivery of the PSL 2019 and listen to the roar from Dubai. Off stump के बाहर गेंद, इस पर अपना कदम आगे निकाल कर उन्होंने ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब से। पहला चौका पहली गेंद पे। Sami bowls, this one's played on the offside, down towards backward point. Third man moving to his left, there's the fielding, cuts it off. The batsman crosses for one and takes Fakhr Zaman onto 5 and takes also the total onto 5 for no wicket. सुहेल अख्तर अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। लाहौर कलंदर्स की टीम के बारे में हम सब जानते हैं कि पहली तीनों एडिशंस में इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़राब परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन ऑफ द फील्ड इनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा रही, जहां पर पूरे साल के दौरान इन्होंने अपने उन टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स के ज़रिए से पाकिस्तान को वो टैलेंट दिया है जो कि शायद इससे पहले सोचा नहीं जा सकता था। और अब देखना ये कि वो किस अंदाज से, जो कि ऑन द पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उससे इस वक्त तक की चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़ेर करने में कामयाब होते हैं। 33 साला सुहेल अख्तर अब सामना करेंगे मोहम्मद समी का। उनकी पहली गेंद सुहेल अख्तर फेसिंग मोहम्मद समी। Right, here's Sami on his way, passes the umpire, bowls to Akhtar now. Akhtar works it nicely on the onside, back for the square, they'll get one, will they look for two? No, they settle for a single. So Suhail Akhtar off the mark with a single and takes the Lahore Qalandars onto 6 for no wicket. राइट और लेफ्ट हैंड का ये कॉम्बिनेशन मौजूद है लाहौर कलंदर्स के लिए। सुहेल अख्तर के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वसी तजर्बा मौजूद, ये स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स रखने वाले, एक सॉलिड टेम्परामेंट और साथ साथ एग्रेशन रखने वाले क्रिकेटर समझे जाते हैं। दूसरी तरफ फ़खर ज़मान मौजूद है, पाकिस्तान की
ओवल में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का एक इंतहाई अहम रुकन, लेकिन उसके बाद से कभी ऑन कभी ऑफ, लेकिन दिस कुड बी हिज इवनिंग इन दुबई. And here's Sami on his way, right arm over balls, and this one's driven the offside, straight towards extra cover this time, so no chance of run. The ball travelling very quickly towards extra cover, and Lahore Qalandars remain at 6 for no wicket. टॉकिंग अबाउट द चांसेस ऑफ लाहौर कलंदर्स, जिस अंदाज से उन्होंने अपने स्क्वाड को इस मरतबा तश्कील दिया है, उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट रहे हैं AB de Villiers. सो सूनर और लेटर व्हेनेवर द विकेट इज़ गोइंग टू फेल, ये यकीनन यहाँ पर फीचर करते हुए नजर आएंगे और एक बहुत बड़ा मौका होगा शायद AB de Villiers के लिए खुद भी, जो कि ऑलमोस्ट पूरी PSL के लिए अपने आप को अवेलेबल करने को तैयार नजर आए हैं. पिछले साल में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली एंड ही इज प्लेइंग इन द PSL. Sami bowls and someone drives on the onside this time, beats the short, fine leg, down towards fine leg it goes. Fielder is off it, picks it up just inside the boundary. That's a good bit of fielding. They're coming back for the third run and they're completing quite comfortably. So 3 runs being taken. Cheers all round from the bowler and the fielders for excellent effort on the field. That's right, एक लंबे फासले को तय करके वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे थे फील्डर, जो कि मौजूद थे इस गेंद को फील्ड करने के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की पोजीशन पर, और बाउंड्री लाइन के साथ भागते भागते उन्होंने इस गेंद को रोका. हारिस रऊफ की ये एक ब्रिलियंट एफर्ट रहा था. फिलिप सॉल्ट ने पहले इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया था हारिस रऊफ की जानिब, जिन्होंने इसको रिले थ्रो की तरह वापस फेंका. सो ब्रिलियंट डन इन द फील्ड. फखर जमान 8, सोहेल 1 पे नॉट आउट और सामना करेंगे मोहम्मद समी के पहले ओवर की आखिरी गेंद का. Right, so last ball, the first over coming up from Mohammad Sami. And he's bowling now to the right-handed Sohail Akhtar, who's on strike. Slip in place. Away goes Mohammad Sami. Passes the umpire. Bowls to Akhtar now. Akhtar trying to work it on the onside. Takes from the thigh pad. End of the over. 1 completed. And it's 9 for no wicket. Right, so no surprises. Second over the innings being bowled by Samit Patel, the left-arm spinner, bowling from the far end of the grounds. I did so well last year. Opened the bowling, in fact, for Islamabad United. And here he's now bowling to Fakhar Zaman, the right hand, bowls round the wicket. And Zaman drives to the offside, but straight towards extra cover, so no chance of run. And Lahore Qalandars remain at 9 for no wicket. Yes, that's right. स्पिनर की बॉलिंग यहाँ पर इंतहाई अहम रहने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि बाउंड्रीज को के फुल स्ट्रेंथ की नहीं है, लेकिन स्टिल एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द ग्राउंड्स खासी बड़ी बाउंड्रीज दुबई में मौजूद. Patel bowls and Fakhar Zaman drives towards mid-off again. Ball travels very quickly around the carpet, so there's no chance of run. 2 dot balls in the second over, and it's 9 for no wicket. मोहम्मद समी की कप्तानी का एक बड़ा इम्तहान, जो कि सरप्राइज कॉल थे अब से 1.5 हफ्ता पहले जब उनको अनाउंस किया गया एज द कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस दौरान जब गेंद को फील्ड करने के लिए ड्राइव लगाई थी शाहीन शाह यहाँ पर फील्डर ने, तो वो अपने दाएं घुटने पे कुछ प्रॉब्लम का शिकार दिखाई देते हैं. वी होप के यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, जहाँ पर उनका पिछला पैर ट्रम्बल कर गया था, जिसके बायस गेंद जब उनके घुटने पर आके लगी तो वो उसको ठीक अंदाज से पिक करने में कामयाब ना हो सके. अपरेंटली तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लो नहीं है, बट द प्लेयर नोज द बेस्ट, और ओवरऑल सिचुएशन ठीक नज़र नहीं आती, क्योंकि उनको लिम्प करके इस वक्त अपने साथी खिलाड़ी के सहारे के साथ बाहर जाना पड़ रहा है. और नॉट हारिस रऊफ इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर हियर इन दुबई. That's right, so he's limping off in fact, and he really twisted his ankle when he came into field, and then took the ball onto his knee as well. So the physio comes out. Well, is the physio going to do any work on him? But I don't think so. I think he's going to walk off if he's permitted, and yes, the physio is following him off the field at the moment. So, well, this is unfortunate to lose a player in the second over of the first match of the PSL, and that fielding was smart in the previous over. Then they already stopped the boundary. And now, of course, he's limping off, so we'll have a substitute coming on, and certainly that is not something that the Islamabad United wanted, in fact, in the second over of the innings. That's right, ये मौजूद थे यहाँ पर मिड ऑफ की पोजीशन पर फील्ड करने के लिए, जहाँ से अब ये ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं. ऑल सेट फॉर अनदर डिलीवरी. Patel bowls, and this is driven the onside, but straight towards mid wicket. No chance of a run from Fakhar Zaman. So 3 dot balls.
This is excellent bowling from Samit Patel. A quick mention about the umpires. Richard Illingworth, Pakistan के लिए बहुत जाने माने, along with Rashid Riaz supervising this. Next one driven on the onside. This one runs out towards long on. So single off this over at the moment. Takes the local enders on to 10 for no wicket. Into double figures. But more importantly that Samit Patel has bowled 4 balls in the over and just conceded 1 run. That's right. तो पहले एक अच्छे ओवर के बाद यहाँ पर बेहतर अंदाज से चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब नजर आ रहे हैं. समित पटेल पहला ओवर करते हुए बुर्ज खलीफा एंड से, जहाँ पर उन्होंने बैक ऑफ साइड की फील्ड रखी हुई है बिहाइंड द स्क्वायर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, जबकि फील्डर मौजूद हैं साथ साथ एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर. सामना करेंगे सोहेल अख्तर. So Patel bowling left arm round the wicket and now to the right-handed Sohail Akhtar. He comes in, bowls to Akhtar. Akhtar is now flicks it on the onside. Backman a square, they get 1. Will they look for 2? 2 fielders converging, coming back for the second. Should complete it quite comfortably. They do in the meantime. So 2 runs taken and takes to the calendars on to 12 for no wicket. जबकि आज टेलीविजन अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं शुजैब रजा, एक और फैमिली नेम पाकिस्तान की इस अंपायरिंग में. और देखना ये कि कितनी जल्द ये तमाम पहली विकेट को हासिल करने में कामयाब होंगे. पहली बॉल पे चौका लगाया था फ़खर जमान ने और उसके बाद से अच्छा कमबैक. इस वक्त मिनी कॉन्फ्रेंस जारी है. मोहम्मद समी जो कि इस टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनके पास कप्तानी का अच्छा तजुर्बा मौजूद है. गो के बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने शायद कप्तानी नहीं की, स्पेशली एट अ लेवल ऑफ फ्रेंचाइज और इन सच अ लीग, लेकिन कराची की डोमेस्टिक टीम्स को लीड करते आए हैं. और अब देखना है कि यहाँ पर किस अंदाज से परफॉर्म कर पाते हैं. इस दौरान आई थिंक देयर इज अनदर रीजन फॉर दिस स्टॉपेज, क्योंकि दोनों अंपायर्स राशिद रियाज और रिचर्ड इलिंगवर्थ भी एक क्विक डिस्कशन के लिए मौजूद हैं. Yes, that's right, and they've got to the third umpire. In fact, there's something they've got to check on. A little discussion going on with the 2 umpires, and third umpire has been called in. They're having a chat with the third umpire. And what it's all about at the moment, we don't know, but let's wait and see if we can pick up anything from the umpires itself. So hold up in play right now, because the third umpire has been consulted on some issue. Perhaps we didn't really pick it up, but something that is worrying the umpires, and they're waiting because perhaps there was a glove on the ground and the ball hit the glove. Well, the batting glove was on the ground and the ball hit the glove and then ricocheted towards the stumps. What is the rule there, Akil? Since he was already, within the crease, so I don't think there is any problem. So the mini conference has ended. If there is any verdict, it should come now. राशिद रियाज अपनी फील्डिंग और अंपायरिंग पोजीशन पर रिस्पेक्टिव पहुंचे हुए रिचर्ड इलिंगवर्थ, और अब ये कॉन्फ्रेंस जारी है उनकी खिलाड़ियों के साथ, जहां पर वो उनको कुछ ताकीद कर रहे हैं. सो सूनर और लेटर वी शुड नो. समित पटेल और मोहम्मद समी इनकी इस बात को सुनते हुए वेयर वी स्टैंड. लाहौर कलंदर्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है दुबई में. 12 रन ऑलरेडी बना चुकी है बिना किसी नुकसान के. एंड नाउ सम सिग्नल इज गोइंग टू कम. यहाँ पर उन्होंने 1 रन शॉट का बज़ाहिर इशारा दिया है. Well, there we are. So perhaps we're getting some signals coming out. But if you have that one shot, the umpire should bend his elbow. But I didn't see that elbow being bent. So I think the 2 runs stands at the moment. But what that signal is all about, perhaps telling the third umpire, right, thank you very much for adjudicating on whatever that problem was, because the batting glove was on the ground. There's Samit Patel, last ball on the second over, his first balls, and nicely flicked away by Akhtar on the onside towards mid-wicket. They'll pick up 1. That's the end of the over. 2 completed. Now calendars 18 for no wicket. Right, so there we are, and when we come back, in fact, that 5 runs were given to the batting side because the ball hit the glove, and the umpires checked with the third umpire, adjudicated on that, and awarded 5 runs to the batting side. So that's how Lahore Qalandars reached 18 for no wicket at the end of the second over. So that's a big over, in fact, for Lahore Qalandars. They had 9 of the first over, 9 of the second over as well. So good going for them at the moment, because they got a run rate of 9 runs per over. That's right, and looking at the options of Islamabad United this evening, जो कि उनके पास बॉलिंग के लिए मौजूद है. मोहम्मद समी और समित पटेल बॉलिंग करने की शुरुआत कर चुके हैं. फ़हीम अशरफ, who was one of the most successful bowlers of the previous PSL, वो उनके पास मौजूद. पाकिस्तान की टीम का एक रेगुलर फीचर, along with another youngster शादाब खान,
जो कि पावर प्ले के अख्ताम के बाद सूनर और लेटर आपको यहाँ पर फीचर करते हुए नज़र आ सकते हैं। फिल वक्त मोहम्मद समी एक मरतबा फिर वार्म अप करते हुए इस कॉमेंट्री बॉक्स एंड से, क्योंकि देयर वाज क्वाइट अ ब्रेक, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने ओवर मुकम्मल किया था उसके बाद दोबारा यहाँ पर वो वार्म अप करते हुए एंड ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट ओवर टू बिगिन। सोहेल अख्तर विल फेस. Right, here we are. Sami, in fact, a change in the bowling, and this one's driven down the track straight to the bowler. And it's, in fact, a change in bowling because Waqas comes on, a left armer. Well, the youngster trying to prove his might in Pakistan. Waqas Maqsood is the bowler, the left armer. Pakistan have certainly got lots of left-arm quick bowlers. Yes, that's right. वकास मकसूद another one of them. 31 साला फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फैसलाबाद वुल्स की टीम जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फीचर करती थी, उसका एक रेगुलर फीचर एक T20 इंटरनेशनल अब तक खेलने में कामयाब हो चुके हैं और एक इंटरेस्टिंग पिक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से, और वो कितना इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, इट इज़ टू बी सीन. बॉलिंग की इब्तिदा कर चुके हैं जहां पर एक अच्छी गेंद के जरिए से उन्होंने शुरुआत की है, जबकि पिछले ओवर की हाईलाइट रही ये प्लेंटी के अवार्ड किए गए 5 रन जो कि समित पटेल जिस पर एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड और फ्रस्ट्रेटेड नजर आए इस डिसीजन को देने के बाद राशिद रियाज की जानिब 18 for no loss लाहौर कलंदर्स. Right, so here's Maqsood on his way once again for the commentary box and bowling past the umpire, goes to Akhtar, and Akhtar on the back foot thumps it out towards point region, no chance of run, and Lahore Qalandars remain at 18 for no wicket. अच्छी टाइट लाइन और लेंथ के साथ अब तक 2 गेंदें की हैं वकास ने, लेकिन दूसरी तरफ सोहेल इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा कंप्लेसेंट होते हुए अब तक तीसरे ओवर की इब्तिदा है जहां पर सिर्फ एक चौका लगाने में कामयाब हो पाए हैं फ़खर जमान, जबकि सोहेल जो कि इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं विड्थ हासिल ना होने की वजह से. सो सूनर और लेटर वी माइट सी कि वो इसके जवाब में फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर शॉट खेलने के लिए जाएं. Maqsood on his way again, passes the umpire, goes to Sohail Akhtar, and Akhtar lofts it on the offside, over the head of mid-off, down to long off the 4. एक क्रैकिंग अपवर्ड स्लैब सोहेल की तरफ से जो कि आउटसाइड की बाहर जानिब जाती हुई इस गेंद जिस पे वो मुकम्मल तौर पर तैयार मौजूद थे, मोहम्मद समी के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे जो कि मिड ऑफ पर मौजूद, और एक गंदा गेंद छप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई. 4 रन 22 for no loss. लाहौर कलंदर्स वेरी मच ऑन देयर वे. पहला चौका सोहेल की जानिब से. Right, so 2.3 overs completed. Lahore Qalandars 22 for no wicket. Faqir Zaman on 9, and Sohail Akhtar, he's on 8 at the moment. 5 extras in the total. And here's Maqsood on his way once again to bowl to right hand Akhtar. Bowls to him. Akhtar nicely steers it down towards short third man. A bit of fumble in the field allows the batsman to cross for 1. Takes Lahore Qalandars on to 23 for no wicket. वकास को पाकिस्तान ए टीम की तरफ से भी यहाँ दौरा करने का मौका मिला था जहाँ पर उन्होंने इन डिफरेंट मैचेस कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अपने पेस को जनरेट करने और टाइट लाइन और लेंथ के लिहाज से अच्छी शोहरत रखते हैं. अनदर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर वकास के वो यहाँ पर फीचर करके इस बड़े स्टेज पर अपने होने का सबूत दें. अच्छा पेस जनरेट करते हुए अब तक, लेकिन इसके जवाब में एक चौका लगा चुके हैं. दूसरी तरफ सामना करेंगे फ़खर जमान, पैक ऑफ साइड की फील्ड में मौजूद, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पर, जबकि ऑन साइड पर फील्ड मौजूद दायरे पर शॉट फाइन लेगा और उसके साथ मिड ऑन और मिड विकेट. Maqsood bowls now to Faqir Zaman, and Zaman waits for a slow ball, beaten outside the line of off stump, collected by Ronkin wicket keeper, and that will complete the over. No, there's one more ball left, so 2.5 overs completed, and Lahore Qalandars 23 for no wicket. एक्सीलेंट कम बैक बाय वकास जहां पर उन्होंने अपनी फिंगर्स को रोल किया और उसको मुकम्मल तौर पर पिक करने से बेबस रहे. इनफैक्ट देयर वाज अ फेंट एज एज वेल, और इसको चूंकि मुकम्मल तौर पर आहिस्ता स्पीड के साथ फेंकने में कामयाब रहे थे. इस बाय से एक टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ल्यूक रॉन्की के ग्लव्स में गेंद गई. लाहौर कलंदर्स 23 for none. Is something building up in Dubai. फ़खर जमान सामना करते हुए. And here's Maqsood on his way again to bowl to the left-handed Faqir Zaman. Zaman, he's batted well. He's on 9 at the moment as Maqsood passes the umpire, bowls to him now, and driven on the onside, straight to the mid-wicket, single being taken. Did it take to be close? Not to be. Survives is Faqir Zaman, completes the 1, ends the over. 3 completed. Lahore Qalandars 24 for no wicket.
वेलकम बैक टू दुबई, जहां पर पहला मैच जारी PSL 2019 का। समित पटेल की गेंद, उसको कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव करने के लिए जा रहे थे फखर जमान, लेकिन इस फ्लाइट को देखने के बाद अपने स्ट्रोक को चेक किया और वापस ड्राइव करने में कामयाब रहे समित पटेल की जानिब। अगली गेंद करने के लिए तैयार, फार एंड से पहला ब्रिलियंट ओवर फेंका, लेकिन पेनल्टी के 4-5 रन ज्यादा कंसीड करने के बायस वो ओवरऑल इनके लिए बेहतर फीचर ना कर पाया। राउंड द विकेट गेंद करने के लिए फखर जमान को रूम बनाया है, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। इट्स अ ह्यूज सिक्स। बड़ा शानदार छक्का फखर जमान का, और जगह बनाते हुए इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। शानदार छक्का, 30 स्कोर लाहौर कलंदर्स का। चौथा ओवर इस वक्त चलता हुआ। समित पटेल की बॉलिंग फिगर्स को खराब करते हुए फखर जमान राउंड द विकेट एक मरतबा फिर कदमों का इस्तेमाल किया है। वंस अगेन डिस्पैच्ड एंड इट्स अ 4। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकलकर ड्राइव किया इस गेंद को, और फील्डर जो कि मिड विकेट पर मौजूद थे उनके ऊपर से खेलते हुए इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया फखर जमान ने। ही मूव्स ऑन टू 20 ऑफ जस्ट 13 डिलीवरीज, 2 चौके, एक शानदार छक्का अब तक इसमें शामिल, और धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं फखर जमान। 34 लाहौर कलंदर्स, वी आर इन द 4th ओवर। लाहौर कलंदर्स का अब तक का शानदार आगाज, टॉस हारने के बाद रिमेंबर कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं दुबई में। राउंड द विकेट समेत मिडल स्टंप पे गेंद, फॉरवर्ड आके इस गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड की जानिब। लॉन्ग ऑन से फील्डर भागते हुए आए हैं फिलिप, 1 रन भागकर तेजी से बनाने में कामयाब। लाहौर कलंदर्स 35 बिना किसी नुकसान के। सो 3 लॉन्ग ईयर्स, और उसके बाद चौथे साल का निशान अच्छा आगाज करने में कामयाब हुए हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो ऑब्वियसली, बट टाइम विल टेल कि वो क्या अख्तिताम भी अच्छा कर पाएंगे नहीं। जी हाँ, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है फखर जमान की, और अगर यही इनकी फॉर्म रही तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे अब सुहेल, और गेंद को उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया है। जस्ट 1 बाउंस, अनदर बाउंड्री फॉर कलंदर्स। बड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ समित पटेल का। 15 रन अब तक इस ओवर में हासिल हुए, 1 छक्का, 2 शानदार चौके, और अब फील्डर को डीप कर दिया गया है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर भेज दिया गया है, जबकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बुला लिया गया है दायरे के अंदर। सो ये एक फील्ड में चेंज किया समित पटेल ने, जब आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की, जो कि उनका दूसरा ओवर है। सामना करते सुहेल, गेंद को वापस खेले हैं समित की जानिब। वाज देयर अ चांस, विल हैव टू वेट एंड सी। 4 ओवर्स का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा, लाहौर 39 फॉर नन। Waqas to continue from the pavilion end, middle step again, forward आकर इस गेंद को खेले स्क्वायर लेग की जानिब। 1 रन भागकर तेजी से बनाने में कामयाब। लाहौर कलंदर्स टॉस हारने के बाद पहले ही बैटिंग करते हुए स्कर्टन रेजर में 40 बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत है लाहौर कलंदर्स के लिए। इनका रन रेट इस वक्त 9.6 बड़ी शानदार शुरुआत है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए ये दोनों बैट्समैन सुहेल अख्तर जो 13 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 10 गेंदों में, और 22 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 16 गेंदों में फखर जमान, जबकि वकास अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 7 रन दिए उन्होंने, कोई कामयाबी अब तक हासिल नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सर्टनली अंडर प्रेशर फील करते हुए अपने आप को। वकास गेंद करने के लिए सुहेल को ओवर द विकेट आएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, डाउन द लेग साइड स्लो डिलीवरी, जिसको फॉरवर्ड आकर खेले ऑन साइड पर और भाग के तेजी से रन मुकम्मल किया। सो डेफिनेटली देयर वाज अ चांस इन द लास्ट डिलीवरी ऑफ द प्रीवियस ओवर, जहां पर फॉरवर्ड आकर वापस बॉलर की जानिब खेला था और गेंद हालांकि तेजी के साथ आ रही थी, हथेली के निचले हिस्से पर लगी समित पटेल के, और वो उसको ग्रैब करने में कामयाब ना हो सके और बाद में वो किसी हद तक तकलीफ में भी नजर आए। लेकिन दैट वाज द अपॉर्चुनिटी के जिसके ज़रिए से वो पहली विकेट हासिल की जा सकती थी
लाहौर कलंदर्स की और इस PSL 2019 की। सो फार इट हैज़ बीन सो गुड ओवरऑल PSLs में। अब तक लाहौर कलंदर्स का ये पावर प्ले का रन रेट शानदार रहा है, लेकिन उसको वो कैरी करने में कामयाब नहीं हो सके। आज क्या वो अपने इब्तदाई मैच से ही तासुर देने में कामयाब होंगे या नहीं, इट इज़ ऑल टू बी सीन इन दुबई। पैक ऑफ साइड की फील्ड है अगली गेंद करने के लिए वकास की। फील्डर मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर, जबकि ऑन साइड पर 2 फील्डर मौजूद। वकास मकसूद गेंद करने के लिए फ़खर जमान को मिडल स्टंप पे गेंद, फॉरवर्ड आकर इसको खेले वापस वकास की जानिब। देयर इज नो रन, 41 for none। अच्छी बॉलिंग वकास की, ये देखते हुए कि फ़खर जमान जो पिछले ओवर में खासे जारहाना मूड में नजर आए थे और खासे जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए ऐसे बैट्समैन को कंटेन करना, लेकिन अपनी इस अच्छी गेंद की बदौलत न सिर्फ उनको कंटेन करने में कामयाब हुए, बल्कि सर्टली उनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर इनको 2 या 3 डॉट डिलीवरीज खिलाने में वो कामयाब हो जाएं, जो खासा मुश्किल नज़र आता है। कैसी सूरत हाल में जब फ़खर जमान जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन उनके सामने हो और वो भी बहुत ही जारहाना अंदाज में और धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहा हो। शानदार बिगनिंग हासिल कर चुके हैं लाहौर कलंदर्स। ओवर द विकेट वकास रूम बनाया है इस गेंद को खेलने के लिए, ड्राइव करने में कामयाब, ऑन साइड की जानिब, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। इट्स अ 4। वकास ने कोशिश अच्छी की थी और कोशिश की थी कि बैट्समैन को फॉलो करें वो, लेकिन सही तरह से उसको फॉलो करने में कामयाब नहीं हो सके। और फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी प्लेसमेंट के साथ इस गेंद को मिड विकेट के फील्डर के दाएं जानिब से खेलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। शानदार चौका फ़खर जमान का, और इस चौके के साथ फ़खर का स्कोर हो गया 26-45 स्कोर हो गया है लाहौर कलंदर्स का। 5वां ओवर चलता हुआ, जबकि 2 गेंदें 20 ओवर की बाकी। 5 चौके और 1 छक्के इनिंग्स में लगाने में कामयाब ऑलरेडी लाहौर कलंदर्स, और अब तक पहली विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। ब्रिलियंट डिलीवरी राइट इनटू द ब्लॉक होल, गेंद को फेंकने में कामयाब रहे, लेकिन उतना ही अच्छा जवाब दिया फ़खर जमान ने, जो कि एक और ऊंचे शॉट के लिए खेलने के लिए आगे जाना चाहते थे, लेकिन अपने कदमों के जाने बाद इस गेंद को इन दी एंड नेगोशिएट किया। वापस पहुंचे वकास के पास, देयर इज नो रन। अच्छी फाइटिंग स्प्रिट शो करते हुए वकास, हालांकि पिछले गेंद पर इनको शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस मरतबा गेंद को उन्होंने बिल्कुल यॉर्कर लाइन पर रखा और मौका नहीं दिया फ़खर को कि इस गेंद को वो किसी रन के लिए खेल सकें। फील्ड में एक और तब्दीली, और अब जो मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे उनको थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ ले लिया गया अंपायर के साथ, और जबकि शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर मौजूद हैं और एक फील्डर जो कि लॉन्ग ऑन पोजीशन पर मौजूद हैं, तो ये 3 फील्डर जो कि ऑन साइड पर हैं। वकास अपने बॉलिंग मार्क पर रेडी और सामना कर रहे हैं एक बार फिर उनका फ़खर जमान। गेंद करने के लिए 5 ओवर की आखिरी गेंद होगी। फ़खर जमान 26 रन पे नॉट आउट। मिडिल स्टंप की जानिब गेंद, फॉरवर्ड आकर ड्राइव किया है, हल्की मिसफील्ड, लेकिन रन बनाने में कामयाब नहीं हो सके। 5 गॉन, लाहौर 45 for none। Absolutely remarkable and colourful scenes in Dubai, जहां पर एक कर्टन रेजर खेला जा रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ द पावर प्ले आखिरी ओवर इसके करने के लिए लाए हैं शादाब खान को, जो कि शायद सबसे बड़ी दरियाफ्त कहे जा सकते हैं PSL की। इस PSL का अपना पहला ओवर करने के लिए फार एंड से निस्बतन शॉर्ट डिलीवरी, जिसको फॉरवर्ड आके खेले हैं बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। स्वेविया द यंग एंड सेंसेशनल शादाब खान अपना पहला ओवर करते हुए, जहां समी के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर को लेकर आए, और यही उन्होंने किया। दैट्स राइट, लेग स्पिनर रिप्लेसिंग लेग स्पिनर। एक मरतबा फिर बैकफुट पे जाकर इस गेंद को निकाला ऑन साइड पर। क्रॉस बैट शॉट था जिसके जरिए से 1 रन बनाने में कामयाब रहे लाहौर कलंदर्स। 46 for none। अब तक 46 रन स्कोर हुए हैं और आखिरी ओवर चल रहा है ये पावर प्ले का, जिसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और देखना होगा कि इन फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के ख़त्म होने के बाद फ़खर जमान किस अंदाज में बैटिंग करते हैं। और साथ साथ सुहेल अख्तर जिन्हें आज बैटिंग में ऊपर भेजा गया है और उनको प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में। यूजुअली नंबर 6 नंबर 7 पर आकर बैटिंग करते रहे हैं ये इससे पहले, लेकिन आज ओपन कर रहे हैं विद फ़खर जमान।
शादाब कंटिन्यू करते हुए फॉर एंड से एक मरतबा फिर डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद, इसको ऊंचा खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन मिस किया इस गेंद को। गेंद पैड को बज़ाहिर ब्रश करती हुई पहुंची है। नो, अंपायर राशिद रियाज का इशारा है कि ये वाइट है। दूसरी तरफ भागकर एक्स्ट्रा रन हासिल किया। सुहेल को पहुंचना था, गेंद स्ट्राइक एंड पर विकेट्स को आके लगी भी, लेकिन इससे पहले सुहेल अपनी क्रीज पर पहुंचने में कामयाब। ऑल हैपनिंग इन दुबई। जी हाँ, 2 रन और ऐड हुए हैं स्कोर में। इन 2 रन के साथ लाहौर कलंदर्स का स्कोर हो गया 48 बगैर किसी नुकसान के, जबकि फ़खर जमान जो जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग ऑन 26 एंड सुहेल बैटिंग ऑन 15। इस मरतबा रूम बना कर खेलने के लिए गए सुहेल। इस गेंद को एक मरतबा फिर क्रॉस पैड से निकाला टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन एरिया, जहां पर मौजूद है फिलिप सॉल्ट, और उन्होंने इस गेंद को वापस थ्रो किया टूवर्ड्स अ फील्डर। 49 लाहौर कलंदर्स एक शानदार और रिमार्केबल स्टार्ट हासिल करने में कामयाब इस PSL में। लेकिन अब तक देखा जाए तो रिलेटिवली अच्छा ओवर है शादाब का। सिर्फ 3 रन इस ओवर में उन्होंने अब तक दिए हैं, अदरवाइज दूसरे बॉलर्स की खातिर खा पिटाई की है इन दोनों बैट्समैन ने, लेकिन ये ओवर थोड़ा टाइट करते हुए। और इस मरतबा रूम बनाया है और गेंद लगता है कि अबू धाबी की जानिब रवा दवा, शायद दुबई की तारीख का सबसे बड़ा छक्का लगाने में कामयाब। इट्स अ माइटी 6 बाय फखर जमान। इसको कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी बात की थी कि अच्छा ओवर जा रहा है और अगली गेंद पर शानदार छक्का लगाने में कामयाब रहे फखर जमान, और 6 रन के साथ स्कोर हो गया 55। शादाब 5वीं गेंद करने के लिए इस मरतबा लो फुल टॉस हासिल हुई है। फॉरवर्ड आकर इसको निकाला है टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन। एक मरतबा फिर फिलिप सॉल्ट अपने बाएं जानिब गए। अनदर रन एडेड। फखर जमान इज ऑन फायर 33, लाहौर 56 बिना किसी नुकसान। और अब देखना ये होगा कि क्या लाहौर कलंदर्स के जो आने वाले बैट्समैन हैं वो इस मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पिछले मैचेस में जो हमने देखा है लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को, अंदाज बड़ा अच्छा होता है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसको वो कायम नहीं रख पाते हैं। पावर प्ले की आखिरी गेंद जिसको बैकफुट बजा के निकाला सुहेल ने जस्ट फॉर अ सिंगल। तो यूं ये महंगा ओवर इख्तिताम तक पहुंचा शादाब का। 6 ओवर के बाद 57, लाहौर बिना किसी नुकसान। छह ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ और 6 ओवर्स के बाद लाहौर कलंदर्स का स्कोर 57 बगैर किसी नुकसान के रन बनाने की औसत है 9.5 रन पर ओवर। और फखर जमान जो बहुत ही जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, 33 रन अब तक उन्होंने स्कोर किए हैं। 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 चौके और 2 शानदार टावरिंग सिक्सर्स लगाने में वो कामयाब हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ सुहेल अख्तर जो 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, 15 गेंदों में 2 चौकों की मदद से। और शादाब जिन्होंने अपना पिछला जो ओवर किया वो खासा बेहतर ओवर था, लेकिन फिर एक गेंद पर एक छक्का लगाने में बहरहाल कामयाब हुए फखर जमान। तो पिछले ओवर में शादाब के 12 रन हासिल हुए। और अब फ़हीम अशरफ को बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं मोहम्मद समी, जो कि बयान से बॉलिंग करेंगे और सामना करेंगे उनका इस मरतबा सुहेल अख्तर जिनके बारे में बात हो रही थी कि यूजुअली नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन आज टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हुए फ़हीम सामना कर रहे हैं सुहेल। आए गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ज़ोरदार कोशिश में फ़हीम अशरफ अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके, गिर भी गए, लेकिन बहरहाल ये डॉट डिलीवरी रही और सुहेल अख्तर इस गेंद को खेलने में कामयाब नहीं हो सके। फ़हीम अशरफ बड़े अच्छे बॉलर हैं और ख़ासतौर से उनकी गेंद बड़ी तेज़ी के साथ स्किप करती हुई विकेटों की जानिब आती है। देखना यह है कि कैसे मरहले पर जबकि बड़ा अच्छा आगाज़ दिया है फ़खर जमान और सुहेल ने 57 रन का आगाज़ बगैर किसी नुकसान किए कि फ़हीम अशरफ क्या तासुर छोड़ने में कामयाब होते हैं। जहाँ फ़हीम अशरफ पर अब खासा प्रेशर इस लिहाज से होगा कि जो बाकी के जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी रन उन्होंने दिए हैं और कोशिश उनकी होगी कि अगर ये 1-2 ओवर्स अच्छे कर सकें। इस बीच एक बार फिर सामना कर रहे हैं उनका सुहेल अख्तर। फ़हीम आए गेंद की, इस मरतबा जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद आया मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास और रन बनाने का कोई मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर लाहौर 57 बगैर किसी नुकसान के। विकेट बिल्कुल आसान और सीधी खेल रही है, बज़ाहिर कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती। हालांकि शाम का वक्त है और यहाँ पर जो हवा चलती है हल्का सा मॉइस्चर फ़ज़ा में मौजूद होता है, बाज़ औक़ात बॉलर से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन विकेट
बिल्कुल आसान खेल रही है। बड़ा अच्छा मौका है ये फ़खर जमान और सोहेल के लिए स्कोर को मज़ीद आगे बढ़ाने का और अपनी मुखालिफ टीम पर दबाव डालने का। एक मरतबा फिर फ़हीम अशरफ तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए। जी फ़हीम और सामना कर उनका सोहेल अख्तर। फ़हीम आए, गेंद की और इस ऑफ नंबर गेंद, इसको आहिस्ते के साथ खेल दिया थर्ड मैन के जाने। फील्डर मौजूद है वहाँ पर। एक रन का आसानी के साथ इजाफा हुआ स्कोर में। सोहेल का स्कोर हुआ 18 और अगर ये इसी रफ्तार से रन स्कोर करते हैं तो सर्टली एक बड़े टोटल की तरफ जा सकते हैं। चैलेंजिंग टोटल हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हालांकि इससे पिछले सीजन में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ही वो टीम थी कि जिसने पहली बार 200 का हिंसा अबूर किया था, लेकिन उसके बाद उसी मैच में वो उस जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उसको ज़्यादा देर बरकरार ना रख सके थे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उसे चेस कर लिया था। 203 रन उन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन 200 रन का जो बहरहाल हिंसा है वो 2 दफ़ा ही क्रॉस करने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। तो इनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन इनका मसला ज़रा सा ये रहा है कि ये थोड़े अनलकी रहे हैं। एक अनलकी साइड चोकर्स जिनको आप कह सकते हैं कि जब मैचेस इनको जीतने होते हैं वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाती है। दूसरे लफ्ज़ों में इनको PSL की साउथ अफ्रीकन टीम कहा जा सकता है। इस बीच फ़हीम अशरफ एक बार फिर सामने उनके फ़खर आए गेंद की और फ़खर ने इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर मिड विकेट की जानिब 1 रन के लिए। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 59। एक मरतबा फिर गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, पूरा घूम गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और मिड विकेट की जानिब गई। वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, लिहाजा सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका। फ़खर जमान जिनका शुमार दुनिया क्रिकेट के खासे जारहाना अंदाज से बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों में होता है और वनडे मैचों में उन्हें डबल सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। एक बार फिर फ़हीम अशरफ तैयार हुए अपनी बॉलिंग के निशान पर गेंद करने के लिए सोहेल अख्तर को। जहाँ तमाशाइयों की खासी बड़ी तादाद आज स्टेडियम में मौजूद इस मैच से लुत्फानंदोज़ होती हुई। इस बीच फ़हीम अशरफ एक बार फिर आए गेंद की ऑफ नंबर गेंद, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं बैकवर्ड पॉइंट के जाने। थर्ड मैन के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, बड़ी खूबसूरत अंदाज से एग्जीक्यूट किया गया। अपनी जगह पर खड़े खड़े उन्होंने पोजीशन बनाई और गेंद को थोड़ा सा तिरछे बल्ले के साथ उन्होंने निकालने में कामयाब हुए थर्ड मैन की जानिब और 4 रन हासिल किए। तो एक और दिलकश स्ट्रोक, स्कोर हो गया 63 बगैर किसी नुकसान के। फ़खर जमान 34, सोहेल 22 और आहिस्ता आहिस्ता अब इस्लामाबाद पर प्रेशर बढ़ता हुआ। देखना यह है कि इस्लामाबाद के खिलाड़ी किस तरह कमबैक करते हैं और इन दोनों के रन्स के फ्लो को किस तरह रोकने में कामयाब होते हैं। जहाँ बहुत ज़रूरी होगा अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर उन्हें एक रीजनेबल टोटल पर रोकना है तो। एक बार फिर फ़हीम अशरफ सामने सोहेल आए गेंद की, इस मरतबा अच्छी गेंद पड़कर अंदर की तरफ आई, इसको दिफाई अंदाज में खेले थे बैकवर्ड पॉइंट की जाने। फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं, ओवर मुकम्मल हुआ। 7 ओवर्स के बाद 63 लाहौर कलंदर्स, कोई आउट नहीं। राइट से शादाब अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फार एंड से और सामना करेंगे उनका फ़खर जमान। शादाब जिन्होंने से पिछले ओवर में 12 रन दिए, कोई विकेट कब तक हासिल नहीं हुई है। दूसरा ओवर करते हुए पहली गेंद और इस गेंद को फॉरवर्ड आकर आहिस्ते के साथ खेला। कवर्स में फील्डर मौजूद, रन देना चाह रहे थे लेकिन अपने इरादे को बदल दिया बिल्कुल आखिरी लम्हात में और वापस आए क्रीज में, कोई रन नहीं। शादाब को इस मरहले पर बड़ी जहानत के साथ बॉलिंग करनी होगी और मैं समझता हूँ फ्लाइट से परहेज़ करना होगा अगली गेंद फेंकने के लिए। शादाब आए और इस पास गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। शादाब की इस गेंद को स्ट्राइक करके इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। 2 रन हासिल हुए लेकिन अंपायर सेट के इसको चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर के साथ, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने गेंद को रोका उस वक्त वो स्लिप हुए थे और शायद ऐसा लगा कि उनका पैर जो है गालिबन वो जो बाउंड्री स्कर्टिंग्स हैं उन पर अगर लगा हो, उसको चेक करने के लिए उसे थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है और बहुत ही नज़दीकी मामला है हसन साहब। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दूर थे और इसीलिए अंपायर हालांकि अभी तक वो रिव्यू करने के लिए गालिब उन्होंने राब्ता कायम किया है और इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का। और अब देखना ये है कि अंपायर का क्या फ़ैसला आता है। लेकिन अच्छा शॉट था और बड़ी अच्छी फील्डिंग
फील्डिंग का म्यार ओवरऑल अच्छा ही है, सिवाय उसे कैच ड्रॉप के, जो बड़ा सुनहरी मौका मिला था जो इस्लामाबाद ने अपने हाथ से गंवा दिया और पटेल उसे कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर शादाब अंपायर ने इसको कहा कि सिर्फ 2 रन ही हैं। अगली गेंद और उठता हुआ स्ट्रोक खेला था, थोड़ा सा पे शॉट था, लकी रहे, खुशकिस्मती कि वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, वरना खतरनाक हो सकता था लाहौर कलंदर्स और खुद फखर जमान के लिए। लेकिन अंपायर ने अब इशारा दिया कि ये लेग बाय था, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहरहाल खुशकिस्मती उनके साथ थी कि कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था, अगर गेंद उनके बैट को लगती तो भी। अच्छी जहानत का मुजाहरा किया शादाब ने, थोड़ा सा खींच कर उन्होंने गेंद की अपने हाथ को रोक लिया था। उन्होंने ये देखा था कि बैट्समैन स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और बड़ी अच्छी हिकमत अमल है। अगली गेंद इसको उठता हुआ खेल दिया सुहेल ने, बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद हवा में होती हुई 6 रन के लिए बाहर। बड़ा उम्दा स्ट्रोक था इस मर्तबा सुहेल का, बैठते हुए इस गेंद को घुटने पर और बिल्कुल बॉलर के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर जरूर आए थे इसको कैच करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ देखते ही रह गए गेंद को और गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई। शानदार छक्का सुहेल अख्तर का, ही मूव्स ऑन टू 28 ऑफ 21। शादाब एक बार फिर छोटे से स्टार्ट के साथ आए, गेंद के ऑफ स्विंग में बाहर, गेंद इसको स्ट्रेच करते हुए खेल दिया स्वीपर कवर की जानिब 1 रन के लिए। और इस 1 रन के इजाफे के साथ लाहौर कलंदर्स का स्कोर हो गया 72 बगैर किसी नुकसान के। सुहेल बैटिंग ऑन 29, जमान बैटिंग ऑन 36, 73 फॉर नो विकेट। दोनों बैट्समैनों के बल्लों से रन्स का सैलाब उमड़ता हुआ और अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स इस सैलाब को रोकने में कामयाब नहीं हुए। देखना यह है कि क्या सूरत हाल रूबरान होती है अगले 1-2 ओवर्स में। अगली गेंद और इस गेंद को बैकफुट पर आकर बस सॉफ्ट हैंड के साथ खेला था, खुद दौड़ के जाना पड़ा शादाब को फील्ड करने के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ, 8 ओवर्स के बाद 74, लाहौर कलंदर्स कोई आउट नहीं। राइट, सो 74 फॉर नो विकेट। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनको अभी तक तलाश अपनी पहली विकेट की, जिसमें उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। सरप्राइजिंगली अभी तक मोहम्मद समी बॉलिंग करने के लिए नहीं आए हैं। फहीम ही अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड से सामना कर रहे हैं उनका फखर जमान। आए गेंद की और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। ऑन साइड पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मुड़ गए दोनों बैट्समैन। बहुत तेजी के साथ इस रन को मुकम्मल करने का थ्रो विकेट पे आती हुई, लेकिन दोनों बैट्समैन अपनी क्रीज में आने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और तमाशाइयों की जानिब से दादो तहसीन इन दोनों बैट्समैन के लिए। तो 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में और लाहौर कलंदर्स का स्कोर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ। फखर जमान नॉट आउट 37, उनके साथ सुहेल जिन्होंने 29 रन बनाए हैं। दोनों खिलाड़ी बड़े पूरे एतमाद अंदाज से जारहाना बैटिंग करते हुए और अभी तक बॉलर्स बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं। शायद कोई मौजूदा रूनुमा हो और 1 या 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इस्लामाबाद खेल में वापस आ जाए। इस बीच फहीम अशरफ एक बार फिर सामने फखर जमान आए गेंद की और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक है, लेकिन खुशकिस्मती की गेंद फील्डर से थोड़ा आगे गिरा, चूंकि फील्डर डीप में थे और गेंद लॉन्ग ऑन पोजीशन की तरफ आया ज़रूर, लेकिन चूंकि फील्डर डीप में थे इसलिए आउट होने का कोई खतरा मौजूद नहीं था। 1 रन बहरहाल हासिल हुआ फखर जमान को। तो जमान का स्कोर हो गया 40। 28 गेंदों में ये 40 रन बनाए हैं उन्होंने और अब तक इस इनिंग्स में हसन साहब 6 चौके और 3 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं दोनों बैट्समैन। जी हाँ, फखर जमान ऐसे ही बैट्समैन हैं जो अगर थोड़ी देर तक क्रीज पर खड़े रहें तो दूसरी टीम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अभी तक अपनी कोशिश में कामयाब हैं और सुहेल अख्तर भी अब बड़े पूरे अंदाज से खेल रहे हैं और उनका स्कोर भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ। एक बार फिर फहीम इस मरतबा उनके सामने सुहेल अख्तर आए, गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बैकफुट पर आकर कट किया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट की जानिब। फील्डर मौजूद है वहाँ पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, सिर्फ 1 रन का इजाफा हो सकेगा, लेकिन अच्छा स्ट्रोक था सुहेल का। और आपने बड़ा सही कहा, हसन साहब के बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सुहेल। हालांकि इस सीज़न में ये पहली मरतबा है कि जब वो ओपन कर रहे हैं, अदरवाइज नंबर 5 नंबर 6 पर वो बैटिंग करते हैं, तो इस नए रोल को अच्छे बखूबी अंदाज में निभा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग दोनों ओपनिंग बैट्समैनों की। हालांकि मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है लाहौर कलंदर्स की इस मरतबा, पूरे एतमाद के साथ और नए अज़्म, नए हौसले, नए वलवले के साथ वो मैदान में उतरे हैं। फहीम अशरफ अपने बॉलिंग मार्क पर रेडी। एक बार फिर सामने है उनके
इस मरतबा फ़खर जमान आए गेंद की और जमान ने इस गेंद को ज़ोरदार अंदाज में खेलना चाहा था, लेकिन टाइमिंग नहीं थी इस शॉट में। गेंद डीप में खड़े फील्डर के पास आया जो कि लॉन्ग ऑन पर प्लेस थे। 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के इजाफे के साथ लाहौर कलंदर्स का स्कोर हो गया 79 बगैर किसी नुकसान के। रन बनाने की औसत है 9.12। बड़ी हेल्दी ये रन बनाने की औसत है लाहौर कलंदर्स की जानिब से और यकीनन एक बड़े टोटल की तरफ इस वक्त वो मार्च करते हुए। शॉर्ट गेंद थी जिसे पुल करना चाहते थे मगर सही तरीके से पुल करने में कामयाब नहीं हुए। फिर भी 1 रन उन्होंने हासिल किया और फ़हीम अशरफ अब गेंद करने के लिए तैयार हैं। सोहेल अख्तर को दाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन, खास तजुर्बेकार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। जहाँ सोहेल अख्तर जो लाहौर कलंदर्स की ही फाइंड कहे जा सकते हैं, एक बार फिर सामने उनके आए गेंद की। फ़हीम अशरफ ने अच्छी गेंद थी, डबल माइंडेड हुए इस मरतबा इस गेंद को खेलने के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, उसको पहले पुल करने के लिए गए थे लेकिन उसके बाद अपना इरादा उन्होंने चेंज किया और गेंद थोड़ा सा ऊंचा उठता हुआ आया था, सही तरह टाइम नहीं कर पाया गेंद को। बहरहाल कोई रन हासिल नहीं हुआ और स्कोर बदस्तूर 79 बगैर किसी नुकसान के। 9वां ओवर चलता हुआ। फ़हीम अख्तर की बॉलिंग की सबसे बड़ी खूबी भी यह है कि उनके एक्शन से कतई गेंद की रफ्तार का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात गेंद गैर मामूली तौर पर स्किड करती है और तेज़ी के साथ ऊपर आती है। और फ़हीम गेंद को मूव कराने में भी अहलियत रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी तक पिच में कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुई। जहाँ फ़हीम अशरफ आखिरी गेंद इस ओवर की जो कि 9वां ओवर है। सामने सुहेल आए गेंद की और इस मरतबा फुल लेंथ डिलीवरी, फ़ायदा उठाया इस गेंद का। बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। Right, so after 9 overs, 83 for no wicket, लाहौर कलंदर्स आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन मोहम्मद समी ने, लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा अब तक हासिल नहीं हो सका उनको अपने इस फैसले का और उनके तमाम बॉलर्स और तमाम फील्डर्स ही उनकी उस फैसले को अब तक जस्टिफाई करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स की बड़ी शानदार शुरुआत है, कोई विकेट उनका आउट नहीं हुआ है। 83 उनका स्कोर है, रन बनाने की औसत है 9.22 और ज़ाहिर है कि ऐसी पोजीशन में कि जबकि तमाम विकेट्स उनके हाथ में हो तो ये दोनों बैट्समैन को इस वक्त पूरी तरह से आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी बड़ा शॉट खेलें। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद समी आए हैं बॉलिंग करने के लिए और इस गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड थर्ड मैन की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन्स। बहुत उम्दा शॉट, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप और उसे बैकफुट पर आकर कट किया। नहायत उम्दा शॉट और गेंद दो फील्डर्स को तकसीम करती हुई, बाइफिकेट करती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। बड़ा दिलकश स्ट्रोक था जिस पर 4 रन उन्होंने हासिल किए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 बगैर किसी नुकसान के। 9.1 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है और यकीनी तौर पर इनकी निगाहें होंगी 175 या 200 के स्कोर पर। जहाँ मोहम्मद समी एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर रेटिंग हैं और सामना करेंगे इस मरतबा भी उनका फ़खर जमान, जिन्होंने पिछले ओवर मतलब इस ओवर की जो पहली गेंद थी उस पर एक बाउंड्री उन्होंने हासिल की है और एक बार फिर अब तैयार हैं सामना करने के लिए। राउंड द विकेट गेंद करेंगे इस मरतबा उनको मोहम्मद समी और सामने फ़खर जमान आए गेंद की और मिडिल स्टंप पर गेंद इस मरतबा इसको फाइन लेग की तरफ खेल दिया। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने कोशिश की गेंद को रोकने की, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, 2 फील्डर गेंद के पीछे लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा खूबसूरत ग्लांस किया और इससे उनके कॉन्फिडेंस का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नहायत उम्दा फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ख़ासतौर से फ़खर जमान का खेल अपने पूरे शबाब पर, अपने पूरे उरूज पर, अपनी तमाम तर रानाइयों और दिलकशी के साथ। जहाँ बिल्कुल बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए थे फ़खर। सो एक बार फिर
सामना कर रहे हैं, 49 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये अगली गेंद और इस गेंद को खेल दिया बैकवर्ड्स को लेकर जाने में, एक रन मुकम्मल करेंगे आसानी के साथ। तमाशाइयों की पुरजोश दाद तहसीन फ़खर जमान की इस इनिंग्स के लिए जिन्होंने PSL सीजन 4 की ये पहली सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है और 50 पर अब वो बैटिंग कर रहे हैं। 32 गेंदों में ये 50 रन उन्होंने स्कोर किए, 5 चौके और 2 छक्के इसमें उनके शामिल, और इस सिंगल के साथ लाहौर कलंदर्स का स्कोर हो गया 92। बहुत ही शानदार इनिंग्स फ़खर जमान की, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और यहाँ पर आए हुए तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद उनकी हौसला अफजाई करती हुई, तालियां बजाकर उन्हें दाद देती हुई, और लाहौर की पोजीशन इंतहाई मजबूत, 92 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। 9.3 ओवर्स का खेल हुआ है और खासी तेज़ रफ्तारी के साथ रन बन रहे हैं। समी इस मरतबा सामना कर रहे हैं उनका सुहेल अख्तर, बीट हुए, अच्छी गेंद समी की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसको कट करने की कोशिश की थी सुहेल अख्तर ने, लेकिन खुशकिस्मती उनके साथ रही कि गेंद ने बैट का किनारा नहीं लिया, वरना बिल्कुल तैयार थे विकेट के पीछे इसे कैच करने के लिए लूक रॉन्ग की, और कोई रन हासिल नहीं हो सका। तो स्कोर बदस्तूर 92 बगैर किसी नुकसान के, और रन बनाने की औसत है 9.52 रन पर ओवर। 175 कम से कम टारगेट होना चाहिए लाहौर कलंदर्स का, और 200 तक अगर पहुंच जाए तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स की पोजीशन खासी मजबूत हो जाएगी इस मैच में। इस बीच मोहम्मद समी एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार, इस मरतबा भी उनका सुहेल अख्तर। समी आए गेंद की और इस मरतबा मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद, इसको आहिस्ते के साथ बैकफुट पर आकर खेलने में कामयाब हुए हैं डीप मिड विकेट की जानिब, और बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए फील्डर्स गेंद को फील्ड करने के लिए सिर्फ 1 रन का इजाफा हो सका। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हुआ 93, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। 1 गेंद और बाकी 100 ओवर की, जिसके बाद 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल होगा, और आपके कमेंटेटर्स होंगे हसन जलील एंड एरिक गाउडा। ये दूसरा ओवर है मोहम्मद समी का, जिसके बाद उनके 2 ओवर्स बाकी रह जाएंगे। यकीनी तौर पर कप्तान, इंतहाई सीनियर और तजुर्बेकार बॉलर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनकी कोशिश होगी ब्रेक थ्रू हासिल करने की इस नाजुक मरहले पर। बहुत ज़रूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर उन्हें इस गेम में वापस आना है तो 1 विकेट की निशात ज़रूरत, पार्टनरशिप को तोड़ने की ज़रूरत। आखिरी गेंद जगह बनाते हुए इस गेंद को खेले, रन आउट होने का खतरा, बहुत तेजी के साथ वापस आप क्रीज में ओवरथ्रो मिलते हुए, और ये रन जो कि नहीं होना चाहिए था, इसको हासिल करने में कामयाब रहे दोनों बैट्समैन। थोड़ी सी सनसनी रही इस दौरान, और इसके साथ ओवर मुकम्मल। 10 ओवर्स के बाद 94, कोई खिलाड़ी आउट नहीं लाहौर कलंदर्स। वेलकम बैक टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर लाहौर कलंदर की पोजीशन खासी मजबूत, 94 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। जमान बैटिंग कर रहे हैं 52 के स्कोर पर, और 35 रन बनाए हैं सुहेल अख्तर ने। तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। फहीम अशरफ, नया ओवर, दौड़ना शुरू किया, उन्होंने दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, लेफ्ट हैंडर फ़खर जमान गेंद की, उन्होंने पुल किया, गेंद खासी देर तक हवा में रही मगर महफूज शॉट था, गेंद डीप मिड विकेट पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास आई, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर। Right, so here we are. Lahore Qalandars put it back today by Islamabad United. Opening game of PSL 2019 edition 4. And at the current rate of 9.34 runs and over, if Lahore Qalandars can maintain this run rate, they get to 187. And of course, if they can increase that run rate to 10 runs and over, get to 193. Will they target 200? Let's wait and see. But the openers are giving a fine start. 95 so far after 10.1 overs. कोई मशरफ एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आ रहे हैं, अंपायर के पास से गुजरे, हाथ ऊपर उठा, गेंद की सुहेल अख्तर को, सुहेल अख्तर उसे पुल करना चाहते थे मगर गेंद की रफ्तार थोड़ी सी कम थी, लिहाजा वो पुल करने में कामयाब नहीं हुए, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास आई, स्कोर में किसी रन का इजाफा ना हो सका। So Fahim Ashraf mixing it up, bowled those slow deliveries as well to try and outfox the batsman right now. That's the name of the game, because looking at the track, excellent batting track, there's no doubt about it. Lots of runs to be scored, and when Mohammad Sami won the toss, he elected to field first. I thought, well, if he batted first, made a bigger total on the board, put pressure on the opposition. फहीम अशरफ तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए, तमाशाइयों का शोर बुलंद होता हुआ। फहीम अशरफ की अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल करने में कामयाब हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की जाने, गेंद बाउंड्री लाइन पर जा रही है, फील्डर ने डाइव की, रोकने में कामयाब हुए,
नहायत उम्दा मुजाहरा फील्डिंग का और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब से थ्रो आया विकेट कीपर के पास। बड़ी उम्दा फील्डिंग और तमाशाइयों ने भरपूर तरीके से तालियां बजाकर दाद दी। 97 लाहौर का स्कोर और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। जमान नॉट आउट 52 और सोहेल का स्कोर हुआ 37। Smart fielding, very smart fielding on the boundary. That's a deep backward square leg. Deep backward square leg moved about maybe 10 meters to his right. Got a hand to it inside the boundary and restricted the scoring to 2. So 2 runs saved by the fielder, deep backward square leg. 3 गेंदें 3 रन इस ओवर में अब तक बने हैं। लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर इस वक्त खासी कॉन्फिडेंट और बड़ी मजबूत पोजीशन में। वहीम अशरफ एक मरतबा फिर ओवर द विकेट गेंद करने के लिए आ रहे हैं। भागते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और आउट होने का खतरा और आउट। तो पहली कामयाबी हासिल हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पुल करने के लिए गए थे, गेंद बल्ले पर नहीं आई, पूरी तरह बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई विकेट कीपर के पास आई, जिन्होंने अपने बाएं तरफ दौड़ते हुए कैच लिया और इस तरह ये पहली कामयाबी हासिल हुई। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत खुश है, लेकिन इस अरसे में रिव्यू की अपील की गई। गालिबन सोहेल का ये ख्याल है कि गेंद जो है शोल्डर से ऊपर आई थी और दोनों अंपायर आपस में कंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिव्यू का इशारा और अब थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार। Not a slow delivery, in fact, from Fahim Ashraf, and of course Sohail Akhtar going for the pull shot. He was really beaten with that slow delivery, and perhaps he's looked at the review and asked the third umpire to adjudicate on that. And where did it really strike? Yes, it hit him on the helmet. Well, the finger came up straight away, and I think there's been a pretty good review. Let's wait and see what the third umpire thinks about it. But I think all in all, Hassan, that it went off the helmet. Yes, you're right. और रिव्यू से वाज़ेह तौर पर लगा कि गेंद उनके हेलमेट पर लगने के बाद विकेट कीपर के पास गई थी। तो अब थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार। तमाम निगाहें मैदान की जा रही मरकूज़ और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मसनूई रोशनियों से झगमगाता हुआ नहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। जहाँ तक निगाह जाती है लोग ही लोग नज़र आते हैं। पहले ऊपर का जो फ्लोर था वो खाली था, लेकिन अब वो भी पूरी तरह भर चुका है और लोग इस सूरत हाल से, इस खेल से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये पहला मैच है PSL का और इस वक्त एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है और मालूम होगा कि क्या गेंद बल्ले को लगने के बाद हेलमेट को लगी थी और गालिबन बल्ले को छूती हुई हेलमेट को लगी और फिर उसके बाद विकेट कीपर के पास गई। तो अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की और सोहेल अख्तर आउट। पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और पहली विकेट गिरी लाहौर कलंदर्स की। सत्तानवे लाहौर कल Time out. सत्तानवे लाहौर कलंदर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और टाइम आउट लिया गया है। तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक निस्फ दायरे की शक्ल में खड़ी हुई है अपने कोच के आसपास और उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ लाहौर कलंदर के कप्तान और उनके साथ आकिब जावेद इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें दाद देते हुए बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया फ़खर जमान और उनके साथ सोहेल अख्तर ने। सोहेल अख्तर अभी अभी आउट होकर पवेलियन में वापस गए हैं। 97 रन्स लाहौर के हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 10.4 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है। Right, I think talking about that last dismissal that caught behind by Ronki, in fact, it hit the helmet, no doubt, but on the way, it may have touched the glove. The third umpire thought it touched the glove on the way and then hit the helmet. Of course, Sohail Akhtar was not too sure about that. But sometimes, as a batsman, you're not too sure if it's deflected off a little piece of the glove and then hit the helmet. And of course, he went for the review. But the third umpire adjudicated he was out, so he was given out and he went for 37 or 30 balls. At 97 for 1, the 11th over, Lahore Qalandars still in a very strong position because of a very strong batting lineup as well. And Abid de Villiers could be the new man coming out.
Yes, very, very strong position. They have scored 97 runs at a brisk pace in 10.4 overs, and they are looking towards 175 to 200. So it's going to be a good score. यकीनी तौर पर AB डिविलियर्स के तमाम तमाशाई जो यहाँ पर आए हुए हैं वो बड़ी बेचैनी के साथ और बड़ी बेताबी के साथ मुंतज़िर हैं कि कब AB डिविलियर्स को वो बैटिंग करने के लिए बैटिंग करते हुए देखें। और डिविलियर्स इस वक्त मैदान में पहुँच चुके हैं। तमाम निगाहें मैदान की जानिब मरकूज़, जहाँ पर दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी और जिन्होंने एक तवील अरसे तक साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी गरा कदर खिदमत अंजाम दी, अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। 97 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। So run rate at the moment is 9.09, and at this rate they'll get to 182. That's if Lahore Qalandars maintain this run rate. But AB de Villiers, he's been out of the game in fact in the last few months or so. He's retired from international cricket, but he's playing the leagues at the moment. He's been in fairly good form in the last league he's played. Carried that form into the Pakistan Super League. Let's wait and see as the action unfolds. 2 गेंदें बाकी रह गई हैं फ़हीम अशरफ की, जिन्होंने अभी बड़ी अहम कामयाबी हासिल की और पहली विकेट की शराकत तोड़ने में कामयाब हुए। और फ़हीम अशरफ तैयार हैं। उनके लिए इस वक्त भी डीप थर्ड मैन पोजीशन पर एक फील्डर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक और फील्डर शॉर्ट पॉइंट पर, इसके साथ डीप और वाइड, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं। और फ़हीम अशरफ दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए। AB डिविलियर्स को आए गेंद की, और ये गेंद शॉर्ट गेंद थी। विलियर्स ने बैकफुट पर आते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज से उसे निकाल दिया थर्ड मैन की जानिब, और तमाशाइयों की दाद हासिल की। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 98 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। Right, so de Villiers straight away off the mark with a single. In fact, that was a short delivery, and de Villiers just helped it on its way, opened the face of the batter and ran it down towards that third man region. So he moves on to 1 and takes Lahore Qalandars on to 98 for 1 in the 11th over. फ़खर जमान के लिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, और जो थर्ड मैन पोजीशन पर फील्डर खड़े हुए थे उन्हें शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पर बुला लिया गया। ज़्यादातर फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, सिवाय उन 4 फील्डर्स के जिन्हें दायरे के अंदर मौजूद रहना ज़रूरी है। फ़हीम अशरफ आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा उसे हिट लगाना चाहते थे ऑफ द पैड्स स्क्वायर लेग की जानिब, मगर कामयाब नहीं हुए। गेंद उनके पैड से टकरा कर करीबी ज़मीन पर गिर गई, और उसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ फ़हीम अशरफ का। वेलकम बैक टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हम जिस जगह से कमेंट्री कर रहे हैं, ये जगह ज़मीन से खासी बुलंदी पर और मेन पवेलियन के ऊपर वाक़ है। बड़ा उम्दा आरामदेह कमेंट्री बॉक्स है। यहाँ से पूरे मैदान का मंजर बिल्कुल वाज़े और साफ नज़र आता है। और हम विकेट की तकरीबन सीध में बैठे हुए हैं। बॉलिंग में तब्दीली, और अब शादाब खान गेंद करने के लिए आए हैं, और उनकी पहली ही गेंद पर अपील हुई, लेकिन और शादाब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। शादाब खासी वैरायटी के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेग ब्रेक का अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। Yeah, so the first delivery to AB de Villiers very close to the off stump. He was beaten trying to flick it on the onside, and Luke Ronke had the bails off in a flash, but AB de Villiers' foot was behind the crease. A little bit of shout, but the umpires were not moved by that. शादाब खान एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए AB de Villiers को, और AB de Villiers ने जगह बनाई, पीछे की जानिब हटते हुए उन्होंने गेंद को खेला डीप कवर की जानिब। सिर्फ 1 रन लेने का मौका था जो उन्होंने हासिल किया। 99 लाहौर कलंदर्स का स्कोर। एक खिलाड़ी के आउट होने पर 11.2 ओवर्स का खेल हुआ है। फ़खर जमान अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं 52 के स्कोर पर नॉट आउट। बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए, बड़ी जारहाना उन्होंने बैटिंग की है, और AB de Villiers अब उनके साथ हैं 2 के स्कोर पर। शादाब एक मरतबा फिर तैयार हुए अगली गेंद फेंकने के लिए। फ़खर जमान को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, और इस मरतबा ये थोड़ा सा स्पिन भी हुई, और फ़खर जमान उसे खेलना चाहते थे। अंपायर की जानिब देखा, शायद उसे वाइड बॉल करार दें, लेकिन वाइड बॉल नहीं थी। Right, so there we are. Look for the wide, not to be a wide, so he's got to retake that. 99 for 1. शादाब खान एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए फ़खर जमान को, और फ़खर ने ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब गई। सिर्फ 1 रन लेने का मौका था जो उन्होंने हासिल किया, तो 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में, और इसके साथ ही 100 रन मुकम्मल हुए। लाहौर कलंदर्स के 100 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर।
So the 100 comes up for Lahore Qalandars, 100 for 1 after 11.4 overs, and De Villiers is on strike. शादाब खान का 6 ओवर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा भी स्ट्रोक खेलने में नाकाम रहे। एबी डिविलियर्स फोर्स करना चाहते थे ऑन साइड पर, मगर गेंद उनके बैट और फिर पैड से टकराने के बाद करीबी ज़मीन पर गिर गई। विकेट कीपर विकेटों के पीछे सा गए, उन्होंने गेंद उठाकर शादाब खान को वापस कर दी, जो तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। तमाशाई का जोश खरोश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उठता हुआ शॉट, लेकिन गेंद महफूज थी, फील्डर से तकरीबन 10 गज आगे गिरी और सिर्फ 1 रन बन सका। इस 1 रन के इजाफे के साथ लाहौर कलंदर का स्कोर हो गया 101, 1 विकेट के नुकसान। Well, De Villiers didn't quite get hold of that. रन्स बनाने की औसत 8.41 और मैं समझता हूँ अब ये औसत किसी हद तक कम हो गई है, वरना बड़ी तेज़ रफ्तारी से रन बन रहे थे। बॉलिंग में तब्दीली, हुसैन तलत गेंद करने के लिए आए हैं, मीडियम पेस बॉलर, और ये 13वें ओवर की पहली गेंद होगी। 101 लाहौर कलंदर्स का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। फ़खर जमान नॉट आउट 53, जबकि एबी डिविलियर्स का स्कोर है 3, जो अपना पैड दुरुस्त कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने जूतों के तस्मे भी थोड़े से टाइट किए और अब खेलने के लिए तैयार हैं। और इस अरसे में मोहम्मद समी अपने बॉलर के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए, हुसैन तलत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब देखना यह है कि इस मरहले पर जबकि लाहौर कलंदर की टीम पूरी तरह हावी है, वो क्या कोई विकेट लेने में और दबाव डालने में कामयाब होते हैं या नहीं। हुसैन तलत ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए, डिविलियर्स को गेंद करेंगे, आए गेंद की डिविलियर्स को, डिविलियर्स ने ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत शॉट था तिरछे बल्ले के साथ, फील्डर ने डाइव की मगर वो गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। 4 रन। Well, that was a typical De Villiers stroke of the back foot, forcing it down towards backward point. The fielder was diving at the boundary, was feeling a sweeper cover, had no chance in cutting it off. The ball travelled so quickly, timing was so good from De Villiers. His first boundary of the innings, he moves on to 7 and it's 105 for 1. बड़ी उम्दा टाइमिंग और 4 रन उन्होंने हासिल किए। अगली गेंद हुसैन तलत, मगर उनका रन गलत हो गया, लिहाजा वो रुक गए, या गालिबन विकेट कीपर फील्डर को कोई हिदायत दे रहे थे, लिहाजा वो दौड़ते हुए रुक गए। और डिविलियर्स भी बैटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब दोबारा वापस आ रहे हैं हुसैन तलत अपने बॉलिंग के निशान की जानिब। तमाशाइयों का जोश खरोश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ। उन्हें तवक्को है कि इख्तितामी ओवर्स में छक्कों और चौकों की बारिश होगी, मगर क्या फ़खर जमान जब तक क्रीज पर मौजूद होंगे। लेकिन डिविलियर्स अब हैं, उसके बाद हफीज़ भी हैं भी बैटिंग करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंतहाई मजबूत और मुतवाज़िन बैटिंग लाइनअप है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की। हुसैन तलत तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए, भागना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और डिविलियर्स का बड़ा उम्दा शॉट मिड विकेट की जाने। 2 फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद रोकने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और चौका। Well, De Villiers straight away to his stride. Second boundary, back-to-back boundaries for De Villiers, and takes Lahore Qalandars at 109 for 1. De Villiers into double figures on 11 of 7 balls. और बड़ी उम्दा बैटिंग अब तक डिविलियर्स ने की है। अगली गेंद का सामना करेंगे, हुसैन तलत आए गेंद करने के लिए और डिविलियर्स ने एक बार फिर बल्ला घुमाया मगर इस बार प्लेस करने में कामयाब नहीं हुए और गेंद आई डीप स्क्वायर लेग पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास। 1 रन लेने का मौका मिल सका डिविलियर्स को, जो उन्होंने हासिल किया। और डिविलियर्स जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुखालिफ टीम के लिए खतरे की अलामत। 110 मजबूरी स्कोर, 1 खिलाड़ी के आउट होने पर। So what a transformation for Lahore Qalandars in the batting department. 110 for 1 in the 13th over the innings. And of course, Fakhar Zaman on 53 of 37 balls, 2 sixes and 5 boundaries. Run rate at the moment climbs to 8.80. And at this rate, they'll get to about 180 if they bat the full 20 overs without losing too many wickets. हुसैन तलत अब गेंद करेंगे फ़खर जमान को, बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए 53 के स्कोर पर नॉट आउट
और सिर्फ 37 गेंदों पर उन्होंने ये रन बनाए हैं। हुसैन तलत की अगली गेंद और फखर जमान ने उठता हुआ शॉट खेला, अच्छा शॉट और फील्डर की पहुंच से दूर उनके पीछे गिरी और गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। Well, here we are. So Talat has gone for 13 runs on the 4 balls. He's bowled in his very first over, and Fakhar Zaman taken a total liking for the bowling, the right arm medium pacer, and that one, the last shot was placed very nicely in the air for a while, but very safe indeed towards extra boundary for 4, and Lahore Qalandars moved to 114 for 1 after 12.4 overs. मेगा ओवर हुसैन तलत का यकीनी तौर पर बड़ा कीमती लाहौर कलंदर्स के लिए। हुसैन तलत आए गेंद करने के लिए फ़खर जमान को, और फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, मगर इस मरतबा गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई। सिर्फ 1 रन लेने का उन्हें मौका मिल सका। फील्डर मौजूद थे मिड आउट पोजीशन पर जिन्होंने भागते हुए गेंद को फील्ड किया। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर हो गया 115, 1 विकेट के नुकसान पर। 12.5 ओवर्स का खेल हुआ है, 1 गेंद बाकी है। Well, there we are. So when you win the toss and put the opposition to bat, you want to pick up wickets and restrict the scoring. But of course, the Lahore Qalandars have gone from strength to strength. 115 for 1. Last ball, the 13th over, and the first from Talat, and he's considered 14 of 5 balls. अगर रन रेट मौजूदा रहा तो 179 स्कोर होना चाहिए और 201 तक स्कोर पहुंच सकता है। और इस मरतबा एक और बड़ा उम्दा उठता हुआ शॉट, और ये महंगा ओवर बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उससे पहले गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक और छक्का। पहली ही गेंद को शादाब खान की जोरदार हिट लगाई फखर जमान ने, और गेंद हवा को चीरती हुई सीधी हमारे बिल्कुल सामने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक और जोरदार छक्का। Well, big six again from Fakhar Zaman, and he's certainly taken a liking to the bowling of Shadab Khan as well. And he moves on to 64 of 40 balls. His strike rate is 160, and now Qalandars 127 for 1 after 13.1 overs, and the run rate climbs to 9.65 runs an over. At this rate, they'll get to about 195 in 20 overs. इस इनिंग का 5वां छक्का, और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड पर बहुत ज़्यादा दबाव, 2 वक्त की चैम्पियन या अपनी तौर पर स्ट्रगल करती हुई इस मैच में इस मरतबा हिट लगाई, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, डीप मिड विकेट की जानिब गई। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 128 लाहौर कलंदर का स्कोर एक खिलाड़ी के आउट होने पर 13.2 ओवर्स का खेल हुआ है। 9.5 से पर रन बनाने की औसत। Well, it's rotating the strike, left hand, right hand, competition in the middle. De Villiers on strike. You've got 2 attacking batsmen in the middle, and anything is possible. It could rain sixers, boundaries could come in. So there's no real pressure on the batting department at the moment, but the bowlers are under tremendous pressure. So Islamabad United have got a lot of pressure on their shoulders at the moment to pick up early wickets or quick wickets. शादाब खान अब गेंद करेंगे। एबी डी विलियर्स को आए गेंद करने के लिए, और डी विलियर्स का उठता हुआ जोरदार शॉट, अच्छा कवर ड्राइव था, मगर प्लेस नहीं कर सके। गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब बढ़े हुए फील्डर के पास आई। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 रन के इजाफे के साथ 129 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। जमान का स्कोर 65। बड़ी उम्दा इनिंग्स फ़खर जमान की, उनके साथ एबी डी विलियर्स जिन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं, और शादाब खान ने फैसला किया कि वो राउंड द विकेट गेंद करेंगे। इस अरसे में फ़खर जमान फील्ड का जायज़ा लेते हुए फैली हुई फील्ड, 4 फील्डर्स दायरे के अंदर मौजूद,
आए शादाब खान गेंद करने के लिए और फ़खर जमान ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे मगर सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए और गेंद उनके बल्ले और पैड से टकराने के बाद करीबी ज़मीन पर गिर गई। ल्यू ग्रॉन्ग की विकेटों के पीछे से आए, उन्होंने गेंद उठाकर शादाब खान को दी और शादाब तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। 129 मजमूई स्कोर, एक खिलाड़ी के आउट होने पर शादाब खान एक मरतबा फिर आए, गेंद की फ़खर जमान को, फ़खर जमान ने आगे आकर जोरदार शॉट खेला और गेंद खासी देर तक हवा में रही। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और डाइव करते हुए बड़ा उम्दा उन्होंने कैच लिया रोल करते हुए और बिल आखिर फ़खर जमान की शानदार इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। 65 रन बनाने के बाद आउट हुए और शादाब खान ने यह कीमती विकेट हासिल की। शादाब खान के ओवर की आखिरी गेंद, कामयाब ओवर जिसमें उन्होंने बड़ी कीमती विकेट हासिल की और डी विलियर्स 1 रन लेने में और कामयाब हुए। 1 रन के इजाफे के साथ लाहौर का स्कोर हो गया 130 2 विकेटों के नुकसान पर और डी विलियर्स का इंफरादी स्कोर 11 गेंदों पर 20 और उसके साथ ही 14वां ओवर मुकम्मल हुआ। Right, 130 for the loss of 2 wickets. Lahore Qalandars put it to bat today by Islamabad United. This is match number 1 of the PSL of 2019, the 4th edition. The batsmen out were Sohail Akhtar for 37 and last over Fakhar Zaman went for 65. It was 97 for 1 in the 11th over and 129 for 2 in the 14th. So we got de Villiers on strike and AB de Villiers on 20. He's faced 11 balls at the moment. And here we are with Delport bowling the first ball, the new over, and that's driven out. It was mid off, no chance of run, and it's 130 for 2, and we will come back. Our golden boy, Akhil Sama. Thank you, Eric. 130 for 2. Lahore Qalandars को ये 2 breaks मिले जरूर हैं, लेकिन still Mr. 360 out there. AB de Villiers 12 गेंदों पे 20 रन बना के. Delport bowls and de Villiers on the back foot cuts well, but well fielded, well stopped at point region, but can't prevent the batsman getting a single. One more the total, 131 for 2. तो 2 गेंदें कम, ये 6 ओवर मजीद दस्तयाब हैं इस लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए एक ब्रिलियंट फिनिश करने को, जो कि एक शानदार ओपनिंग स्टार्ट हासिल कर चुके हैं। ब्रेंडन टेलर, मोहम्मद हफीज, कार्लस ब्रैथवेट टू कम, क्रीज पर मौजूद हैं एंटन रेफ्स द न्यूजीलैंडर और एबी डिविलियर्स। तो 200 यकीनन ऑन द कार्ड्स हैं, लेकिन इसके लिए इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना होगा। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ब्रेक्स लगाने की इस पिछले ओवर में हासिल होने वाली फ़खर जमान की विकेट के साथ। So Dempsey on strike and here's Delport who bowls on this one, played gently on the onside down to that vacant region mid on, down towards deep mid wicket, and the batsman pick up a single. So Dempsey chops the mark with 1. It's 132 for 2 and Cameron Delport, the 7th bowler, will be tried by Mohammad Sami. दैट्स राइट, और वो गेंद पर पेस को अच्छे अंदाज से हटाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स मौजूद हैं जो कि जल्द इस तरह की गेंद को पिक करने के लिए और अपने कदमों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए खासी शरूरत रखते हैं। 132 for 2. Delport bowls the right arm over the wicket, and this is nicely played by de Villiers down towards deep backward square legs. A single on a first straight away and takes the Lahore Qalandars on to 133 for the loss of 2 wickets and takes de Villiers on to 22 of 14. एंडन डेफसिच मौजूद हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले, जो कि सिडनी थंडर्स के लिए बिग बैश लीग खेलकर पहुंचे हैं। कोई काबिल जिक्र फॉर्म इनकी वहां पर मौजूद नहीं थी। Another T20 franchise specialist, Endon Defsic. Delport bowls, and this time played by Delport on the onside down towards deep mid wicket.
One more run taken, so singles coming in so far in this over. 134 for 2. That's right. न्यूजीलैंड की टीम के लिए इन्होंने यहाँ पर दौरा किया और अपने उस यादगार कैच की एफर्ट के साथ जिसमें अपने हाथ को बड़ी हद तक जख्मी कर बैठे थे, इन्होंने शोहरत हासिल की इसी ग्राउंड में और आज वो लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए नुमाइंदगी करने के लिए उनके रिटेन रहते हुए मौजूद। Therefore, balls, De Villiers drives on the onside towards long on, easy single to be taken. That will complete the over as well. 15 completed. Lahore Calendars 135 for 2. Right, change the bowling at the find. Shadab Khan has bowled his 4 overs, 1 for 34 his figures, and youngster Waqas Maqsood to operate for the find, the grounds, and bowling to the right-handed David De Villiers. Maqsood bowling over the wicket to the right-handed De Villiers. Comes in, passes the umpire, bowls to De Villiers, and De Villiers on the back foot forces it to the offside towards right mid-off. They'll pick up an easy single, 135 for 2. पिछले चंद ओवर से अपने मोमेंटम को ब्रेक करने में कामयाब, जिस विकेट को हासिल किया फखर जमान की शादाब खान ने, उसके बाद से मुसलसल ये दूसरा ओवर होने को है कि जिसमें ना ही कोई बाउंड्री हासिल की है और ना ही इसके अलावा वो तेजी के साथ रन्स बनाने में कामयाब रह पाए हैं। बॉलिंग फिगर्स इससे पहले वकास मकसूद के इन्होंने 2 ओवर्स में 12 रन दिए। इनका दूसरा ओवर खासतौर पर महंगा रहा जिसमें इन्होंने बाउंड्रीज कंसीड की। अब एक चेंज एंड यानी कि बुर्ज खलीफा की तरफ से गेंद करने के लिए मौजूद, सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर एंटन डेवचिच। So Devcic on strike. Here's Maqsood on his way once again. Passes the umpire, bowls to Devcic, and Devcic playing very gently on the offside towards that point region. And the batsman crossed over a quick single, 127 for 2 in the 16th over. Yes, we must say it's a good comeback by Mohammad Sameer's team, जिन्होंने खुद 2 ओवर में 20 रन दिए हैं बिना किसी विकेट के। समित पटेल के 2 ओवर बाकी हैं, पहले 2 ओवर में 19 रन दे चुके हैं। शादाब ने अपना कोटा मुकम्मल किया। ये वाहिद अब तक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 34 रन दिए फॉर अ विकेट। फहीम अशरफ 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। हुसैन तलत ने 1 ओवर में 20 रन दिए जो कि वापस आते नजर नहीं आते। कैमरॉन डेलपॉट का पहला ओवर रिमार्केबल उनका बॉलिंग रेट, 5 रन दिए उन्होंने सिर्फ अपने ओवर में और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो आखिरी 5 ओवर्स का खेल जारी। एबी डिविलियर्स क्रीज पर मौजूद, हफीज, ब्रेंडन टेलर एंड कार्लस ब्रेथवेट yet to come. Oxford balls, De Villiers drives up in the offside towards long off, field under it, and well is caught. That's the end of De Villiers. Right, Maqsood bowls to Devcic, drives to the onside towards long on, and they'll pick up a single. The new man will be on strike, that's Brendan Taylor, and he's come in at number 5 and takes the Lahore Calendars total on to 138 for 3.
डेफिनेटली टेल अप टाइम फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. क्या जबरदस्त कैच हासिल किया है. गेंद पर एक मरतबा फिर फिंगर्स को रोल किया था वकास मकसूद ने. दैट वाज एन अपिश ड्राइव बट अ रादर हाफ हार्टेड स्ट्रोक बाय डिविलियर्स, जिसको कैच करने के लिए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर मौजूद है फिलिप सॉल्ट. एयरबॉर्न होकर उन्होंने अपने बाएं हाथ से इस गेंद को कैच कर लिया, दूसरे हाथ को सपोर्ट में दिया और ब्रिलियंट अंदाज से हासिल किया. व्हाट अ मोमेंट फॉर वकास, जिन्होंने इस बड़ी विकेट को हासिल किया एंड राइटफुली सेलिब्रेट भी करते चले गए. 138 for 3. Right, so it's coming around the wicket. That's Maqsood and bowling to Brendan Taylor. First ball to Taylor, and Taylor comes forward and plays his soft hands on the offside towards that gully region, awakened region. Taylor's off the mark with one, and the total up to 139 for 3. And now putting things into perspective, मोहम्मद हफीज ने अब तक अपने आप को बचा के रखा है और देखना ये कि वो किस अंदाज से इस गेम को फिनिश करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आने वाले इन 5 ओवर्स में रादर सूनर या लेटर उनको बैटिंग के लिए आना जरूर पड़ेगा. दूसरी तरफ वकास मकसूद एक जबरदस्त कमबैक करने में कामयाब रहे इस बड़ी विकेट के साथ जो कि उन्होंने एबी डिविलियर्स की हासिल की है. खासा तजर्बा रखने वाले ब्रेंडन टेलर जो कि जिम्बाब्वे की टीम को खैर बात कहकर दोबारा वापस आ चुके हैं अपने इन एफर्ट्स को वो कोशिश करने के बाद वहाँ पर जो कि उन्होंने इंग्लैंड में की. अब देखना है कि यहाँ पर क्या परफॉर्म कर पाते हैं. दूसरी तरफ एंटन डेफिसिट अब तक बहुत खामोश 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर मौजूद. एंड इट्स बीन 3 overs almost since there is no boundary erring. That's right, so the run rate has dried up a bit, dropped to 8.78. And here's Maqsood on his way to bowl to Devchich and left. Bowls to him now, and Devchich plays it nicely on the onside, just rolls his wrist on that down towards deep backward square leg. So one single been taken and takes to the Lahore Qalandars under 140 for 3 in the 16th. And that's the end of the over. When you come back, next one is driven by Devchich down the grounds towards long on. The batsman crossed for 2 more runs, takes the Lahore Qalandars into 142 for 3. And the irony is, the last 3 overs, just 10 runs have come in for Lahore Qalandars. That's right, यहाँ पर बाउंड्रीज हासिल करना निदारत नजर आता है इस लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए. ब्रिलियंट एफर्ट इन द डीप, जहाँ पर समित पटेल ने ये दौड़ लगाई और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री से भागकर वो डाइव लगाकर इस चौके को रोकने में कामयाब रहे. 7 इनके साथी फील्डर मौजूद थे जिन्होंने थ्रो को वापस फेंका. 142 for 3. एंड डेफिसिट अब तक कदम जमाने में कामयाब नजर नहीं आते. Delport balls, and this time down the track is Devchich. Didn't quite get hold of it. The ball runs out towards deeper mid-wicket. The batsman will cross for 2 more runs, so takes the total up to 144 for the loss of 3 wickets, and takes Devchich along to 9. तो समी जो कि ऑन हिज टोस नजर आ रहे हैं, उनको इस कप्तानी में अब तक अच्छी सपोर्ट नजर आती है इनके सीनियर प्लेयर्स ल्यूक रॉन्की और समित पटेल की. और इसी के जरिए से लुक एट द बॉलिंग ऑप्शंस ही हैज यूटिलाइज्ड सो फार. 7 बॉलर्स अब तक आजमा चुके हैं. Delport balls, and this time didn't quite get hold of it again. The ball runs out towards backward square leg this time. Only a single on offer, and takes the Lahore Qalandars on 145 for 3. And Devchich moves in double figures on 10, brings Taylor on 1 on strike. जो कि एक मौके पर 200 के करीब पहुंचती दिखाई दे रही थी. इस स्कोरिंग रेट के साथ वो शायद 170 या 180 तक भी पहुंचने में कामयाब ना हो सके, लेकिन अभी भी एक अच्छे फिनिश की ज़रूरत. एक अमेजिंग कमबैक करने में कामयाब रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, courtesy some brilliant point-to-point, wicket-to-wicket bowling by Cameron Delport and party. Delport balls this time to Taylor. Taylor plays gently on the onside, out towards deep mid-wicket. They get one, will look for 2. No, the fielder in very quickly prevents the second run being taken. That's smart fielding. Just a single. 146 for 3. Yes, very accurately done in the field by Islamabad United. अब देखना ये कि वो आने वाले ऑप्शंस को किस अंदाज से यूटिलाइज कर पाएंगे. सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी है. कैमरन डेलपोर्ट ने अब तक ये दूसरा ओवर मुकम्मल करने जा रहे हैं. 2 गेंदें बाकी हैं, कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की. Delport balls again, round the wicket, balls, and this time it's driven away on the onside, out towards long on by Devchich, picked up inside the boundary. The batsman crossed to 1, that will end the over. So 17 completed, it's 147 for 3. Oh, it's 1 ball left in the over, in fact. So 16.5 overs been completed. 1 ball left, 147 for 3. So the last ball to be faced by Brendan Taylor. Here's Delport, bowling right arm over the wicket. Away he goes, past the umpire, bowls to
to Taylor. Taylor going for the sweep shot, given out. LBW is gone. ये विकेट हासिल की है कैमरॉन डेलपोर्ट ने, जो कि इस बेहतरीन बॉलिंग का कि जिसमें वो मुकम्मल तौर पर बांध के रखे हुए थे बैट्समैन को, फाइनली इसका रिवॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे। ऑन साइड पे खेलने के लिए जाना चाहते थे ब्रेंडन टेलर, गेंद रैप्ड ऑन द पैड हुई राइट इन द फ्रंट ऑफ स्टंप्स और इसके जरिए से उन्होंने बिना किसी तवक्कुफ के अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया। अंपायर रे इलिंगबर्ट का डिसीजन सामने आया और अब 3 ओवर्स का खेल बाकी। लाहौर 147 4 खिलाड़ियों नुकसान पर वो पटरी से उतरती हुई, जिसको दोबारा चढ़ाने के लिए कार्लस ब्रैथवेट इज द न्यू मैन इन, जबकि एंटन डेफसेट दूसरे एंड पर मौजूद लाहौर कलंदर्स की टीम को एक अच्छे फिनिश की जरूरत, एंड विल सी कि वो किस अंदाज से इसको करने में कामयाब होंगे। एंड फॉर द फाइनल 3 overs your movers and shakers will be Eric Gauder and Zishan. Right, there we are. So another wicket falls, and certainly Lahore Qalandars have lost their way a bit. They lost 3 wickets, in fact, for 18 runs. Zishan moves beside me. Thank you very much, Shaker. If I'm a mover, you're a shaker. Certainly, जो प्लॉय था इनका, जो प्लॉट था लाहौर कलंदर्स का, उसको सर्टनली खोते हुए, और अब तक जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है लाहौर कलंदर्स की, उसमें यही रहा है कि इनको शुरुआत अच्छी मिली है, ओपनिंग्स अच्छी मिली है, लेकिन उसके बाद इनके आने वाले बैट्समैन जो हैं उसको सही तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं और मोमेंटम को वो बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं, और इस प्रोसेस में अपने विकेट्स वो एक के बाद दीगरे गंवाते रहे हैं। और अब सर्टनली वो जो एक प्रेशर बनाया था उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड पर, उसमें वो काफ़ी हद तक अब नीचे चले गए हैं। इस बीच 1 रन ऐड हुआ है स्कोर में, 148 लाहौर कलंदर्स का स्कोर 4 विकेट के आउट होने पर। डेवचिच 12 और कार्लोस ब्रैथवेट जो बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं, और कौन भूल सकता है इनके वर्ल्ड कप के वो छक्के जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे और अपनी टीम को उन्होंने कामयाब करवाया था और बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन कामयाबी दिलवाई थी। इस बीच ओवर की अगली गेंद और वकास की इस गेंद को आस्तिकी के साथ खेला थर्ड मैन की जानिब कार्लोस ब्रैथवेट ने फॉर अ सिंगल। सो अपने स्कोर की शुरुआत की ब्रैथवेट ने, इज ऑन 1 एंड लाहौर कलंदर्स 149 for 4. Well, the last 5 overs, in fact, Islamabad United have really come back very strongly, picked up wickets, important wickets. Looking at the wickets of Fakhar Zaman, then they had A.B. de Villiers, Brendan Taylor, batsman back in the dugout, and this has been a good comeback, a fight back from Islamabad United. So वकास मकसूद जो अपना चौथा और आखिरी ओवर कर रहे हैं, अब तक 1 विकेट हासिल किया 19 रन देके। डेवचिच सामना करते हुए उठता हुआ शॉट, लेकिन सही तरह से टाइम नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा गैप में खेले थे और फ़हीम अशरफ आया इसको दौड़ते हुए फील्ड करने के लिए, सिर्फ 1 रन हासिल हो सका डेवचिच को। डेवचिच जो इससे पहले लाहौर कलंदर्स के लिए ओपन करते रहे हैं, आज उनको लोअर डाउन द ऑर्डर खिलाया गया है, और सुहेल अख्तर जो लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते रहे हैं उनसे आज ओपन कराया गया था। तो सुहेल अख्तर जिन्होंने आज 37 रन बनाए, 30 गेंदों में 4 चौके और 1 शानदार छक्का उन्होंने लगाया, और 97 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही उनकी फ़खर जमान के साथ। ब्रैथवेट सामना कर रहे हैं वकास का, गेंद की ऑप्शन के बाहर, गेंद स्लोअर गेंद था, खेलने में कामयाब हुआ, इसको बैकवर्ड पर स्वीपर की जानिब और 2 फील्डर्स डाइव करके रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, 4 रन। Nicely timed, nicely placed by Carlos Braithwaite, beat that diving man at backward point, and also the sweeper couldn't cut it off. He was diving at the boundary. 4 useful runs for Lahore Qalandars, 154 for 4. इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पेस को रीड करने में कामयाब रहे थे वकास के, जिन्होंने कदरे स्लो गेंद किया था। ये एक बार फिर वकास सामना कर रहे उनका कार्लोस ब्रैथवेट आए गेंद की, और इस मरतबा बीट करने में कामयाब हुआ, अच्छी गेंद वकास की। हालांकि इससे पिछली गेंद पर इनको एक चौका लगा था, लेकिन उसके बाद अपने पेस को उन्होंने कंट्रोल किया, लाइन को कंट्रोल किया और बिलाखिर बीट करने में कामयाब रहे, कोई रन हासिल नहीं हो सका। Right, so the last ball coming up of over number 18, and of course I think youngster Waqas Maqsood
could be pretty happy with the performance put in so far. 3.5 overs, 1 for 24 his figures. But of course, Cameron Delport outstanding 2 overs, 1 for 12. And here's the last ball of the over coming up from Maqsood. So वकास मकसूद अपने ओवर की आखिरी गेंद, जो इनके कोटे का भी आखिरी ओवर है, 4 ओवर्स हो जाएंगे इनके। अब तक 3.5 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट ली है। सामने ब्रेथवेट आए गेंद की फ्लोरलैंड डिलीवरी ऑफ के बाहर थी, इसको कट करके खेलने में कामयाब हुए। थर्ड मैन की जानिब 1 रन हासिल होगा और इस 1 रन के साथ लाहौर का स्कोर हुआ 155। 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर 18 ओवर्स मुकम्मल। Right, so 155 for the loss of 4 wickets. 2 more overs to go in their innings और देखना होगा कि इन बाकी मात्र 2 ओवर्स में लाहौर कलंदर्स क्या स्कोर हासिल करते हैं और क्या टारगेट सेट करते हैं फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। फ़हीम अशरफ अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए अपना चौथा और आखिरी ओवर करेंगे। 3 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। सामना कर रहे हैं कार्लोस ब्रेथवेट, 6 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। आए गेंद की और इस पर अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, और इस गेंद को खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। डॉट डिलीवरी। Yes, the Yorker and delivery, but outside the line of off stump from Fahim Ashraf. But well bowled. Carlos Braithwaite was trying to dig it out on the offside, didn't get back to it through the wicket keeper. And a dot ball, more importantly, for Islamabad United. So 155 for the run rate has dropped to 8.53 runs and over. They were going at over 9.5 at one stage. And this has really put pressure. When you lose wickets, well, that's where the pressure comes on the batsman. जी हाँ, बड़ा अच्छा कमबैक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अदरवाइज खासी प्रॉब्लम का शिकार थे जब कोई विकेट आउट नहीं हुआ था। एक बार फिर फहीम आए गेंद की, इस मरतबा इस गेंद को फुल टॉस बनाते हुए खेला, स्विप करने के साथ अंदाज में गेंद हवा में, आउट होने का खतरा और कार्लोस ब्रेथवेट आउट होकर वापस। सुने आने वाले बैट्समैन कैप्टन मोहम्मद हफीज जो नंबर 7 पर बैटिंग करने आए हैं, लेकिन इस दौरान चूंकि साइड चेंज हुई तो डिफचिच सामना करेंगे फ़हीम अशरफ की नई गेंद का। और इस मरतबा स्लोअर गेंद, उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा एक बार फिर, और ड्रॉप कर दिया इस कैच को जो कि शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गया था। काफी मौका था, टाइम था फील्डर के पास, जो कहते हैं समित पटेल, जिनसे ये कैच ड्रॉप हुआ और लाइफ फॉर एंटन डिफचिच। Yes, that's right. And in fact, Samit Patel covered ground. He got his hands to it and just couldn't hold on to that ball. Well, it would have been further trouble for Lahore Qalandars. A very short delivery, in fact, from the bowler himself, that is Fahim Ashraf. And of course, a poor shot played by Anton Jevcic as Patel, running backwards, had his eyes on the ball but dropped it. But in the meantime, well, of course, the Lahore Qalandars have lost 4 wickets at 26 runs in the space of 5 overs.
जी, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ अपनी वापसी की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अदरवाइज़ एक मौके पर बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जब फ़खर जमान और सुहेल अख्तर क्रीज पर मौजूद थे। 97 रन की ये पार्टनरशिप हुई थी 10.3 ओवर्स में, जिसके बाद 11वें ओवर में आउट हुए थे सुहेल अख्तर, जबकि इन्होंने 37 रन बनाए थे 30 गेंदों में। इस बीच फ़हीम अशरफ अपने बॉलिंग मार्क पर रेडी, सामने उनके हैं इस मरतबा हफीज। आए गेंद की और हफीज ने जोरदार स्ट्रोक खेल दिया ऑन साइड के ऊपर, गेंद हवा में, एक टिप पकाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। Well, Mohammad Hafiz, first ball is faced. Well, the timing was perfect. In fact, he just picked it up so well from middle leg and lofted on the onside towards that mid-wicket region. One bounce the boundary 4. He's off the mark with 4 and takes the Lahore Qalandars on a 160 for 5. अच्छा ओवर जा रहा था ये फ़हीम अशरफ का, जब उन्होंने डॉट डिलीवरी की, विकेट हासिल की, उसके बाद एक रन दिया, तो 3 गेंदों में उन्होंने 1 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन चौथी गेंद पे बाउंड्री लगाने में कामयाब रहे। उनको हफीज़ अपने स्कोरिंग की शुरुआत की, हफीज़ ने, जिनका स्कोर हो गया 4, 160 लाहौर कलंदर्स का स्कोर, जबकि 2 गेंदें इस ओवर की और उसके बाद 6 गेंदें आखिरी ओवर की, तो 8 लेजिटिमेट डिलीवरीज अभी आनी बाकी लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स की। एक बार फिर फ़हीम अशरफ सामना कर रहे हैं उनका मोहम्मद हफीज, 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। आए गेंद की और स्लो शॉट गेंद थी, फुल कटिंग गए, रन आउट का खतरा, विकेटों में गेंद लगी आकर, लेकिन अपनी क्रीज में आने में गालिबन कामयाब रहे हैं डिवचिच। हालांकि जो स्क्वायर अंपायर है उसको रेफर किया थर्ड अंपायर को, बट आई थिंक दैट ही वाज वेरी मच इन। Well, let's wait and see, because the two batsmen have a little chat, and is Devchich walking off? Well, I think he's looking at walking off, so which means that he has been short of his ground, but he's just waiting for the decision from the third umpire. But having said that, well, I think he was short of his ground, Zishan. Yes, when this ball struck the stumps, there was no doubt, and Devchich is walking out. So another wicket falls, run out is Devchich. राइट में आने वाले बैट्समैन यासिर शाह, जिन्होंने ज्वाइन किया अपने कैप्टन मोहम्मद हफीज को, जो एक रन लेने की कोशिश में डिवचिच आउट होकर वापस हुए। रन आउट, बड़ी अच्छी और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा फ़हीम अशरफ का अपनी बॉलिंग पर, जब उन्होंने उनको अपने फॉलो थ्रू में आउट किया। और अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे यासिर शाह। फ़हीम अशरफ आए, गेंद की अंपायर के पास से गुजरे और इस मरतबा इस गेंद को पुल करना चाह रहे थे, गेंद उनकी बैक पर लगा, रन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन हफीज ने उनको पुश किया और रन हासिल हुआ। तो ओवर के साथ 161 लाहौर, 6 आउट। So 19 overs have been bowled and 161 for the loss of 6 wickets. Lahore Qalandars versus Islamabad United. That's the match number 1 of HBL PSL 2019 season 4. और इसका ओपनिंग मैच आज इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है, जहां पर डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, जो कि लास्ट सीजन में नंबर 6 पर थे। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद हफीज, और इस मरतबा इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया और गेंद 6 रन के लिए बाहर। यासिर शाह का शानदार छक्का।
Well, Yasir Shah straight away doing the job for his captain. A big pull shot on the onside, cleared that mid-wicket boundary quite comfortably into the crowds. In fact, let the ball go. And Mohammad Sami bowled in the last over. And these are important deliveries to be bowled. And it's 167 for 6 in Lahore Qalandars with 5 balls to go in the innings. 14 चौके और 6 छक्के लगे हैं अब तक लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स में. अब एक बार फिर समी सामने यासिर शाह स्पर्ट अभी बैकफुट पर गया, इसको खेल दिया पुल करते हुए ऑन साइड की जानिब लॉन्ग ऑन पर जहां फील्डर मौजूद थे. शादाब और 1 रन का इजाफा किया यासिर शाह ने और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया है और अपने कैप्टन हफीज को उन्होंने अब स्ट्राइक दी है. सो 1 मोर एडेड टू द टोटल. 7 रन अब तक इस ओवर में हासिल हुए. 168 6 आउट. So run rate is 8.69 runs an over. At the current rate, they'll get to 174. They'll want to get more than that if they can. Mohammad Hafiz on strike. He's got 4 runs of 2 balls he's faced. And Mohammad Sami, 4 balls left in the over. That's his 3rd over. And at 168 for 6 after 19.2. Well, another 12-13 runs. I have to be pretty sure that the Lahore Qalandars will be pretty satisfied with that performance. जी, अगर स्कोर को ये 180 तक ले जाने में कामयाब रहे तो सर्टनली एक अच्छा टोटल होगा. 168 भी एक अच्छा टोटल नजर आता है. समी हफीज को आए गेंद की और जोरदार स्ट्रोक हफीज का उठता हुआ ऑन साइड पर. बहुत ही खुशकिस्मत रहे कि गेंद थोड़ा सा आगे गिरा फील्डर से, वरना सीधा गेंद फील्डर के हाथों में भी जा सकता था जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे. 1 रन का इजाफा किया हफीज ने. हफीज का स्कोर हुआ 5 और लाहौर कलंदर्स का स्कोर हो गया 169 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर. Well, we hope that all our listeners on FM 106.2 are just joining us. The news is that the Islamabad United captain won the toss, invited Lahore Qalandars to bat first. Brilliant start. The openers put on 97, but Lahore Qalandars lost their way in the last few overs. समी एक बार फिर सामने उनके इस मरतबा यासिर शाह जगह बना रहे थे और इस गेंद को वाइड किया. गेंद विकेटों पे जाकर लगा है. थ्रो किया था इस गेंद को लूक रॉन्की ने जो कि विकेट कीपर हैं और गेंद विकेटों पर लगा. अपील के अंपायर से जिन्होंने इसको रेफर किया अब 3rd अंपायर को, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता ही है कि शायद यहाँ पर एक कामयाबी और मिल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड को. लेकिन बहरहाल इंतजार होगा 3rd अंपायर के फैसले का जो कि है शौजेब रजा. और अब रिप्ले के जरिए वो ये देखेंगे कि क्या बैट्समैन अपनी क्रीज से शॉर्ट थे या नहीं. और जिस वक्त गेंद विकेटों पर लगा एरिक उस वक्त अपनी क्रीज से बाहर निकल रहे थे रन लेने के लिए यासिर शाह और उनका पैर जो था वो गालिबन उठा हुआ था. लगता है ऐसा ही है कि शायद उनका पैर क्रीज से उठ चुका था जिस वक्त गेंद विकेटों पर लगा. और अगर ऐसी सूरत है तो फिर यासिर शाह को वापस जाना होगा, ना कि मोहम्मद हफीज को. डिसीजन इज पेंडिंग एंड नाउ इट इज आउट. सो अनदर विकेट गॉन. यासिर शाह इज बैक इनटू द हट. Right, so 169 for the loss of 7 wickets. 2 more balls to go in this over. जो कि लास्ट एंड फाइनल ओवर है लाहौर कलंदर्स की. इनिंग्स स्कोर कर रहे हैं मोहम्मद समी, जब तक 2.4 ओवर्स में 28 रन दे चुके हैं. कोई कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई अब तक. और सिर्फ जो कामयाब बॉलर्स हैं वो हैं फ़हीम अशरफ जिन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों का आउट किया, जबकि एक विकेट हासिल की वकास मकसूद, शादाब खान और कैमरन डेलपॉर्ट ने. सो बाकी तमाम बॉलर्स जो हैं जिनमें समित पटेल हैं, जिनमें मोहम्मद समी हैं और ये वो बॉलर्स हैं कि जो विकेट लेस रहे हैं, इनको कोई कामयाबी नहीं मिली है. और नया आने वाले बैट्समैन शाहीन आफरीदी जिन्होंने ज्वाइन किया हफीज़ को और सामना करेंगे अब मोहम्मद समी का. मोहम्मद समी आए गेंद की और उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद हवा में है. फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, लेकिन गेंद 3 फील्डर के दरमियान गिरी और इस दौरान 2 रन का इजाफा किया इन दोनों बैट्समैन ने. स्कोर हुआ 171. Right, so there we are. Shaheen Shah Afridi. Well, he's using the long handle at the moment because we got 1 ball left in the innings and 2 runs scored in the previous delivery. 171 for 7. And Lahore Qalandars will be disappointed. They lost their way. They lost 6 wickets of 42 runs when they were going great guns at one stage at 129 for 1. And then all those wickets falling in a heap certainly put pressure on the batting side. And Islamabad United will be happy that they've come back strongly in this game. एक गेंद और बाकी इस ओवर की, जिसके बाद 20 ओवर्स मुकम्मल होंगे लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स के. जो उनका कोटा है रन बनाने की औसत है 8.62 रन पर ओवर. शाहीन शाह अफरीदी फील्ड का जायजा लेते हुए अपने दाएं जानिब देखते हुए और ऑन साइड पर जहां पर इस वक्त 4 फील्डर नजर आ रहे हैं
इस बीच आखिरी गेंद सभी आए, गेंद की और गेंद पैट पर लगी, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की और अंपायर का गेस्चर आउट एंड शाहीन शाह अफरीदी इज गॉन. राइट, सो इस तरह से लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंची, इन सेंस कि उन्होंने अपने जो 20 ओवर्स का कोटा था वो मुकम्मल किया और उनका फाइनल स्कोर रहा 171, 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर. और इस तरह से अब जो 172 रन है वो बनाने हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जबकि 8.55 के औसत से ही रन स्कोरिंग की थी इन लाहौर कलंदर्स ने, और अब 172 रन बनाने हैं और 172 रन अपने 20 ओवर्स का जो कोटा होगा उसमें उनको बनाने होंगे. सो ये सिचुएशन कि आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन मोहम्मद समी ने, और उसके बाद बड़ी अच्छी और उम्दा पार्टनरशिप रही थी. जो ओपनिंग स्टैंड था लाहौर कलंदर्स का, सुहेल अख्तर और फ़खर जमान के दरमियान 97 रन की वो पार्टनरशिप थी, और जबकि 10.3 ओवर्स में 97 रन स्कोर हुए थे और कोई जवाब नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास लाहौर कलंदर्स की उस धुआंधार इनिंग्स का जो दोनों बैट्समैन खेल रहे थे. लेकिन उसके बाद सुहेल अख्तर बिलाखिर आउट हुए और सुहेल अख्तर को आउट किया था फ़हीम अशरफ ने, कैच किया था उनको लूक रॉन्की ने विकेट के पीछे. 37 रन उन्होंने स्कोर किए थे. 65 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली फ़खर जमान ने, 44 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे उसमें उनके. और इस तरह के उसके बाद फिर जो आने वाले बैट्समैन थे वो यह के बाद दीगरे आउट होते चले गए, जिसमें 24 रन बनाए एबी डिविलियर्स ने, जिन्होंने अपना पहला मैच खेला इस HBL पाकिस्तान सुपर लीग में. 17 गेंदों में 24 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का उसमें उनका शामिल था. और फिर जिस तरह मैंने कहा कि जो बैट्समैन थे वो यह के बाद दीगरे आउट होते गए. 1 विकेट हासिल की समी ने, एक ही विकेट ली वकास मकसूद ने, शादाब खान ने और कैमरन डेलपोर्ट ने, जबकि 2 खिलाड़ियों का आउट किया फ़हीम अशरफ ने. Right, so there we are. At the first innings completed, Lahore Qalandars are put into bat today by Islamabad United, and after 20 overs made 171 for 8. Looking at the scorecard quickly, Sohail Akhtar made 37, Fakhar Zaman 65, and AB de Villiers 24, Anton Devcic 14, Brendan Taylor made 2, and Carlos Braithwaite making 6, Mohammad Hafiz not out 5, and Yasir Shah made 7 with Shaheen Shah Afridi out for 2, 9 extras in the total of 171 for 8, a run rate of 8.55 runs and over. The 4 wickets for the Lahore Qalandars, they were 1 for 97 in the 11th over, 2 for 129 in the 14th, 3 for 137 in the 16th, 147 for 4 in the 17th, 155 for 5 in the 19th, and Devcic wins in the same over at 160 for 6. Shaheen Shah Afridi and Yasir Shah at 169 for 7 in the 20th over, and the last man to go was Shaheen Shah Afridi at 171 for 8 in the 20th over. The bowling figures: Mohammad Sami 4 overs 1 for 30, Samit Patel 2 overs 1 for 19, Waqas Maqsood the youngster 4 overs 1 for 25, Shadab Khan 4 overs 1 for 34, and Fahim Ashraf bowled 4 overs 2 for 24, Hussein Talat 1 over for 20, but Cameron Delport was the man who really brought Islamabad United back in this game. He bowled 2 overs 1 for 12. So the target for Islamabad United is 172 to win in 20 overs. We'll take a short break down here in Dubai.